Football Podcast. Hey guys, after an exciting weekend, we are back with the review, and the channel's hot favorite guest is also back with Rohan with a hot favored win, Liverpool beating Chelsea 2-1. We are gonna have a review with Rohan, with especially we are gonna discuss about Liverpool match. And Paul, उसके बाद क्या प्लान है हमारा? सो चैनल हमारा हाइट से सेबेटिकल आया था बीच में, पर नाउ द चैनल इज बैक अगेन आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक. तो फर्स्ट मैच जो इसके साथ जो रिव्यू हुआ हमारा चेल्सी वर्सेस लिवरपूल, वो हम रोहन के साथ रिव्यू करेंगे. बट बिफोर दैट, बिफोर एवरीथिंग, रोहन वेलकम टू द चैनल अगेन, एंड थर्ड टाइम यू आर कमिंग टू द चैनल आई गेस. एंड Yeah. या हाँ, तो जो भी आपने रिव्यू किया, जो भी आपने अपने ओपिनियन दे रहे थे बारे में और लिवरपूल के बारे में, वो पार्ट पूरा के बाद पूरा चल रहा है उसके बाद सारा का सारा. बट हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट द लिवरपूल थिंकिंग राइट नाउ कि टाइटल चार्ज है लिवरपूल का इस सीजन? No. I still don't. I'm not convinced. I don't think it's even okay to expect a title charge because it gets difficult as and when the season progresses, especially in the last, unless someone is like left far behind, just a City hai, like we won it the last time. Till that happens, I don't think so. The maximum we can come up with is that we can be in contention, but we will not win the race. But for that also to happen, at least half season खत्म होना चाहिए. But to be honest, थोड़ा we have surpassed expectations because no one expected कि इतना easily or seamlessly it will continue if you consider the whole thing. Champions League plus Premier League. तो उस हिसाब से we will get into the Chelsea game, but I wouldn't say it is charge for the title. Like we had predicted in the last episode that it looks like a safe third island. I think Chelsea is a little bit behind Liverpool, but unless Arsenal keep falling behind, which they are doing, then only Liverpool can go closer to Arsenal or City also. Even City is not having such a great seamless, games. आर्सेनल का तो आई So डोंट नो शॉकिंग रिजल्ट uh, था और प्रिडिक्शन था. दिनेश, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आर्सेनल वर्सेस बोurnemouth फर्स्ट मैच इंटरनेशनल के बाद? यू हैव इंजर्ड, साका इंजर्ड था, मार्टिनेली थोड़ा नॉक था, उसके अलावा ओडेगार्ड इज इंजर्ड टिल दिसंबर. सडनली यू डोंट हैव द बैकअप्स नाउ, Yeah. and suddenly Bournemouth were playing out of the park when you have 10 men at least. Yeah. So now what do you think about the So first of all, I have to make a generic statement about the state of English Premier League right now. The state of English Premier League हर एक वीक के बाद हम लोग को एक 15-20 मिनट का सेगमेंट रेफरीज के लिए मतलब अलग से एक वो करना पड़ रहा है. मतलब it's a fucking joke. The state of English Premier League and the referees, especially the English referees. I mean, I don't know what, they don't have common sense. Either they have too much common sense or they don't have common sense, or it's like they are watching a different game apart from the viewers. मतलब हॉवर्ड वेब को जाके वहाँ पे गैरी नेवल के पॉडकास्ट में जाके चिल मारना है, राइट? मतलब हम लोग को क्या चूतिया समझ रखे हैं क्या व्यूअर्स को भाई? वी डोंट, इट्स लिटरली दे डोंट गिव अ फक अबाउट अस ब्रो. दे डोंट गिव अ फक अबाउट द फैन क्राइंग आउट लाउड कि भाई हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें वो चाहिए. नहीं, दे डोंट गिव अ फक अबाउट अस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एड दिस ग्रीवेंस आउट, बिकॉज मैं और पाल हमेशा ये बोल रहे हैं कि भाई गेम इन गेम आउट, मतलब ये लालिगा में मैंने देखा है, चैंपियंस लीग में कितने बार हम लोगों ने रेफरीज के बारे में डिस्कस किया है, नहीं किया है, बट एवरी वीक आफ्टर एवरी वीक वी हैव टू डिस्कस अबाउट रेफरीज, especially I mean the outrageous Manchester City goal which we will be discussing right now, and some few penalty calls which Liverpool should have got, and also Chelsea ट्रेंट अलेक्जेंडर का तो जो चेल्सी जो सैंचो में जो टैकल था, मतलब ब्लेटेंट स्टैम्प ऑन ट्रेंट ऑन सैंचो, नोवेयर नियर द बॉल, ही डिडंट इवन टच द बॉल. ओके, हम दैट इज तीनों लाइक ही अ क्लियर एंड ऑब्वियस मिस्टेक. एक कमेंट बोल रहे हैं, हम तीनों ही ग्रीवेंसेस करेंगे इस बारे में कि यू विल ग्रीवेंस किया ना सलीबा को रेड नहीं देना चाहिए था, लिवरपूल विल ग्रीवेंस किया ना टोसिन को रेड मिलना चाहिए हाँ था, एग्जैक्टली वो है भाई, ना? भाई एंड वही तो मैं बोल रहा हूँ ना चेल्सी विल ग्रीवेंस की वो सैंचो का वो क्लियर पेनल्टी था वो भाई. वाला, मैं क्या बोल रहा ट्रेंट हूँ वाला. पाल कि भाई कंसिस्टेंसी कहाँ है यार? हाँ, कंसिस्टेंसी, अरे एक ही वीक में दो सेम इंसिडेंट को तुमने, एक को तुमने येलो देके देन रिवर्स द डिसीजन यू रिवर्स द डिसीजन टू अ रेड कार्ड, एंड दूसरे को तुमने येलो दिया. आई थिंक दैट इज व्हाट इज वारंटेड फॉर. आई थिंक टोसिन क्योंकि इतना दूर है अपने सर्कल के अंदर, आई थिंक येलो इज द बेस्ट केस, बिकॉज एनीवन कुड हैव कम बैक एंड मे सलीबा ये भी, मतलब येलो इज द मैच्योर चॉइस. गेम को चलने दो भाई 35 मिनट में. मतलब ओके ठीक है, चल ये तो रेफरीज को हटा दिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आर्सेनल, आई think Arteta has made a very huge mistake in the team selection.
एक्चुअली ये जो मतलब ये उसने जो नवानी को क्या चूतियों की तरह भैंचोद उसको क्या इतना अच्छा प्लेयर है, मतलब इतना फ्लुएंटली खेलता है कि उसको मतलब लास्ट के 2-0 जब 83rd मिनट में उसको क्यों ला रहा है भाई? उसको लाके उसको क्या करना चाहता है तू? आई मीन मेरे लिए अभी आर्टेटा के साथ बहुत बड़ा ग्रीवेंसेस है, बिकॉज बिफोर द रेड वी वर शिट, बोर्नमथ वर शिट, वी वर शिट, दे वर नो वन वांट्स टू स्कोर द गोल्स, मतलब एक कोई दोनों एक गलती के लिए वेट कर रहे थे, बोर्नमथ भी यही कर रही थी, आर्सेनल भी यही कर रही थी, मतलब इट वाज लाइक अ पुअर मैच टू वॉच एट अ सैटरडे एट 10 PM, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मैचेस होते थे रात को. अब इट वाज लाइक अ स्नूज फेस्ट बिफोर द रेड कार्ड. इवन द रेड कार्ड के बाद भी वो बोर्नमथ का भी स्नूज फेस्ट था, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल सेट पीस कोर्स. बट let's analyze the game when we are going to analyze. But let's start with the Liverpool game, Paul. Let's deep dive into it. I think I would like to hear from Rohan first, because I think when I've watched the match, I think Paul भी watch किया है, but I think this is a different, for me it's an entirely different Liverpool, very lackluster Liverpool. मतलब I don't think आई थिंक ये आर्सेनल को जो तुम लोग बोल रहे थे कि वी वेट फॉर सम मिस्टेक्स, राइट, वी वेट फॉर वी प्रेस, मतलब तुम लोग तो प्रेस मैंने देखा भी नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट प्रेस, and you guys are literally waiting for people to make mistakes. There is no gameplay for you, but okay, but I don't want to dive that may be a good strategy from Liverpool end, because I know you have got the willpower to go ahead as well. मतलब तुम लोग को attacking भी खेलना आता है, but with, I think from what I viewed, I think it was a very poor game, and I think Chelsea were poor, Liverpool were, but quality wise I think football तो मतलब quality का तो गिर ही गया है, मतलब तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है. सिटी का तो मैं सिटी का आधा मैच में सो रहा था भाई, मतलब कुछ भी नहीं, they just pass here and there, here and there, here and there. भाई it's like, भाई let's move to La Liga bro. This is like Barca smashed Sevilla 5-1. I think let's move on to that. मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टेक है. तो पहले तो लाइक जस्ट 1 minute ऑन द रेफरी थिंग. आई हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ वेरी माइनॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी टेक. मतलब आई एम कमिंग नॉट कमिंग फ्रॉम अ फुटबॉल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम कमिंग फ्रॉम द साइंस पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने पढ़ा है, ये सब्जेक्ट हमको पढ़ाया जाता था. आई एम टेलिंग यू, जितना कर रहे हैं ना उतना ही कर सकते हैं. द प्रॉब्लम इज नॉट रेफरीज, द प्रॉब्लम इज लॉज. जब आप सब्जेक्टिव चले जाते हो ना कि यू दिस डिसीजन इज सब्जेक्टिव, दे भी सकता है कि नहीं दे सकता है, देन डिफरेंट रेफरीज विल गिव डिफरेंट डिसीजन. द सेम रेफरी कैन गिव अ डिफरेंट डिसीजन. जैसे मान लो उसने आज डिसीजन दिया, उसको बहुत ब्लो बैक आया, तो अगले टाइम वो सोचेगा कि चेंज कर दूं, फिर वो सोचेगा कि नहीं सेम अड़ा रहता हूँ. सो द प्रॉब्लम इज नॉट रेफरी. कभी एक कंसिस्टेंसी नहीं आएगा बिकॉज रेफरीज आर डिफरेंट डिफरेंट पीपल. सो व्हेन देयर आर पीपल हु आर डिफरेंट, the decisions will be different. तो it is a problem in the laws. Unless the law clearly says कि इस पॉइंट पे अगर हाफ लाइन पे बंदा जा रहा है, फिर भी इसको येलो ही देना है या इसको रेडी देना है, वो सॉल्व नहीं कर सकते. एंड दिस बाय द वे नॉट लाइक वी कैन डिस्कस सम अदर टाइम, बट दिस इज नॉट अ फुटबॉल डिबेट ऑल्सो. ये क्रिकेट में भी होता है. क्रिकेट में भी बहुत लोगों को अंपायर्स कॉल समझ में नहीं आता है कि वो क्या होता है. पीपल आर लाइक अंपायर्स कॉल में दिख रहा था, विकेट हिट कर रहा था तो इसको आउट दे दो. सो इट्स वेरी सिमिलर इन फुटबॉल. आई हैव स्टडीड दिस सब्जेक्ट. आई एम टेलिंग यू, इट्स रेफरीज की गलती नहीं है, ये लॉज की गलती है. रेफरीज देते रहेंगे सब्जेक्टिव डिसीजन बिकॉज दे आर पीपल. बट कमिंग टू लिवरपूल गेम अगेन, आई थिंक आई डिसएग्री विथ your take, and I talked to Hitesh also when we talked yesterday. I think it was what we have been accustomed to seeing is when Pep and Klopp were playing, or Klopp versus Tuchel were playing, they don't really care. They're very obsessed with the way they play. They don't really care about what is the occasion. Champions League final है या league game है Sheffield के against. They always play on the front foot. I think that will change now. So you're right about City नहीं खेल रही अच्छा, बट सिटी नहीं खेल रही बिकॉज उनके पास रॉडरी नहीं है, तो वो चाह के अच्छा नहीं खेल रहा. आई थिंक लिवरपूल एंड चेल्सी, आई एक्चुअली लाइक द गेम यस्टरडे because it was very tactical. It reminded me of when Benitez and Mourinho used to play in 2005 2006. It will not be exciting like Klopp versus Pep, but it's very very tactical. So I don't think Liverpool were lackluster. It was very deliberate. It doesn't mean that I am 100% for it. मेरे को अभी भी लगता है कि one thing which Slot has done is कि अगर वो एक गोल का भी लीड लेता है, so he is willing to go 20-25 minutes and protect that lead and manage the game. मैं And so move far to we are good at it. But I always think कि एक गोल का लीड तुम कितने भी अच्छे टीम हो, it's just a freak incident which can lead to an equalizer. So I am not 100% for it. But tactically I disagree. Tactically it was a very very good game. I thought, क्योंकि मुझे लगा कि मरेस्का ने भी एक दो चीजें करी थी. जो तुम्हारा गुस्टो है, वो कल ज्यादा का ज्यादा गेम 10 में खेला है. वो 10 Midfield. में आके खेल रहा था. हाँ, 10 में आके खेल रहा था. और कल अगर तुम देखोगे,
ट्रेंट बहुत अच्छा खेला है, ट्रेंट ने सारे टैकल जीते हैं, बट ट्रेंट एक बार भी मिडफील्ड में गया ही नहीं है, और मैकलिस्टर बैठा हुआ था। सो आई थिंक फ्रॉम मेरेस्कास पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक व्हाट मिस्टेक ही मेड वाज कि जब 10 मिनट हो गए थे, ही नोज मैकलिस्टर इज नॉट प्लेइंग, ही नोज कि ट्रेंट इज प्लेइंग पीछे एंड सांचो इज आल्सो चार्जिंग। दैट मीन्स कि जो दो बंदे मिडफील्ड से चांस क्रिएट करते हैं लिवरपूल से, वो दोनों में से नहीं करने वाले हैं। मैकलिस्टर खेल ही नहीं रहा है और ट्रेंट पीछे खेल रहा है। So there was nothing coming from Jones. There was nothing coming from Soboslai midfield से through pass. So he would have, like, what he should have done was he should have got Palmer थोड़ा पीछे and he should have started from there, क्योंकि मिडफील्ड का लिवरपूल का प्रेस आ रहा था, बट प्रेस टूट भी जाता तो किसी को आगे बॉल नहीं देना था, क्योंकि किसी को आता ही नहीं, सोबोस्लाई नहीं दे सकता, ग्रेवेनबर्च बहुत पीछे खेल रहा था कल, विच वाज आल्सो टैक्टिकल, एंड जोन्स भी थ्रू पासेस नहीं दे सकता। जोन्स प्लेड अ वेरी गुड गेम बट थ्रू नहीं दे सकता। आई थिंक मेरेस्का हैड अ मिस्टेक देयर कि उसने नेटो को थोड़ा लेट खिलाया और पाल्मर को वो एक ही पोजीशन में खिलाते चला गया। हमने पता है कल क्या करा, व्हाट स्लॉट डिड वाज, जो स्ट्राइकर खेल रहा था, जोटा तो जल्दी इंजर्ड हो गया था, as soon as Nunes came and as soon as Gravenberch पीछे खेल रहा था, वो लोग सिर्फ मैन मार्क कर रहे थे पाल्मर को। कल लिवरपूल स्ट्राइकर का रोल ही था कि तुमको गोल वोल नहीं मारना है, तुमको पाल्मर को मैन मार्क करना है। तो आई फाउंड इट वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट थिंक चेल्सी वर लाइक अ मिलियन माइल्स अवे, वो कर सकते थे। लाइक आई थॉट जैक्सन प्लेड वेल, आई थॉट सांचो प्लेड वेल, एंड आई थॉट इवन मडवेके स्टार्टेड वेरी वेल, बट सबसे अच्छा जो खेला है कल वो था लाविया। सबसे अच्छा कल लाविया खेला, उसने बहुत सारे प्रेसेस को ब्रेक किया है जो मेरे को लगता नहीं था कि मतलब करेगा। एंड आई थॉट बेंचिंग एंजो फर्नांडिस वाज अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज अगर कभी मिस भी होता था तो कैसेडो I या लाविया I में से कोई disagree. एक तो लेता था। I disagree. At least for ओके। Enzo, सिर्फ एंजो फर्नांडिस पॉइंट के लिए मैं बात में बोलूंगा कि हाँ। लाविया जो सिक्स में खेलता है और जो बॉक्स टू बॉक्स जो काइसेडो खेलता है, देयर इज नो क्रिएटिविटी इन द मिडफील्ड। तो दोनों में पासर नहीं है। काइसेडो में पासिंग है पर बहुत पॉइंट ऑफ टाइम्स है। बहुत ज्यादा मैच में वो एक पास अच्छा खेल देगा, जो उसने जैक्सन को खेला था इस वाले मैच में, तो वो पास है पर नॉट रेगुलर नहीं है। बट एंजो जो उसकी पासिंग है, ही इज वन ऑफ द ग्रेट पासर, गुड पासर इन एटलीस्ट इन चेल्सी फ्रॉम द मिडफील्ड। तो कोई पासिंग को एसोसिएट कोई कर ही नहीं रहा, क्योंकि आप देखोगे माडो के पास बेंच नहीं आया, बॉल नहीं आया, ओनली सिर्फ सेंचो के पास बॉल आया, क्योंकि माडो के पास कोई स्विच ही नहीं कर पा रहा था, कोई किसी में कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो बॉल खेल सके जो एंजो कर सके, क्रिएटिविटी द लाइन और ओवर द बॉल की, मतलब वन ऑन वन क्रिएट कर सके, तो वो चीज भी एंजो नहीं कर पाया। तो एंजो की वजह से वो नहीं हो पाया। तो दैट्स वेयर आई डिसएग्री कि एंजो शुड प्ले, आई डोंट नो कि हू टू विल प्ले, काइसेडो और लाविया। एग्जैक्टली, सो दैट्स आई द डोंट नो प्रॉब्लम। अबाउट दैट। इफ एंजो प्लेज यू हैव फाइव अटैकिंग प्लेयर्स लाइक पाल्मर, और आगे जो तीन खेलते हैं एंड एंजो, तो डिफेंसिवली अगर आप एक्सपोज हुए, तो जैसे लाविया ने एक दो बार बॉल छीनी, कैसिडो तो छीनता है, वी नो इज वेरी गुड एट इट। सो दैट एक्सपोजर विथ अ वेरी, आई वुड से सब स्टैंडर्ड बैकलाइन जिसमें फोफाना तक नहीं खेल रहा है, आई वुड से दैट वाज वेरी रिस्की। एंड रीस जेम्स भी एक साल बाद आया एंड ही हैड अ वीक मोमेंट जब उसने साला वाला पास इंटरसेप्ट नहीं किया, या देखा नहीं कि नूनेस जानबूझ के ऑफसाइड में मूवमेंट कर रहा है उसको उधर लेने के लिए। बट I really thought कि other than that, I don't think Maresca did a lot wrong. The only thing strange, which maybe Hitesh you can explain, is कि वो अचानक से तीन तीन सब्स्टिट्यूट क्यों करने लग रहा था। As soon as he scored the goal, वो तीन को लाने वाला था, वो तो हमने मार दिया, बट वो फिर भी ले आया। और उसमें से एक जो तुम्हारा बी से डिफेंडर है, he was not even, he's not, I think he's the weakest. And then उसको लाविया को भी वो लेके चला गया। I don't know if Lavia was injured. तो I did not understand those substitutions at all. लिवरपूल के हिसाब से हमको, हम मतलब मेरे को समझ में आया, हमको हमारा पूरा गेम प्लान, बिकॉज हमारा सिंपल था। हमारा ग्रावनबर्च और पीछे खेलेगा, हमारा नूनेस मैनमार्क करेगा या स्ट्राइकर मैनमार्क करेगा पाल्मर को, एंड साला विल हैव टू प्ले अलोन क्योंकि ट्रेंट पीछे खेलेगा। एंड दैट वाज द रीजन कि ट्रेंट बीट नहीं हुआ पूरे मैच में, कि डिजर्व सम क्रेडिट फॉर हिज डिफेंस। बट दैट्स व्हाई साला स्टार्टेड नॉट वेरी स्मार्ट, बिकॉज इट वाज लाइक वन अगेंस्ट टू और थ्री। बट एज सुन एज गेम बढ़ते गए उसको समझ में आ गया कि आई कांट ड्रिबल पास, देयर आर टू और थ्री पीपल, वो प्ले मेकिंग करने लगा। एंड आई थॉट दैट्स वेयर चेल्सी वीकेंड अप, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए था कि लिवरपूल राइट से कुछ नहीं करने वाली, जो आएगा वो लेफ्ट से ही आएगा। गैप को रॉबर्टसन फिर भी ओवरलैप करेंगे, ट्रेंट को तो उसने बोला हुआ था कि तुम आगे जाओगे ही नहीं। तो देखोगे हमारे गोल जो भी आए हैं, स्टार्टिंग में अटैक जितने हो रहे थे वो लेफ्ट से आ रहे थे, वो तो लास्ट में साला ने एक ऐसा पास दे दिया कि मतलब वो वन पास हो गया और जोन्स ने मार दिया। वो भी फर्स्ट टच ऐसा था कि मुझे को सांचेज को लगता है कि आगे आना था। सांचेज को जाना चाहिए था, बट सांचेज इज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट गोलकीपर्स। बट अभी तो राया ने भी बहुत खराब खेला है लास्ट गेम, बट सांचेज रेगुलरली खराब ही खेलता है। तो मेरे को वो लगा कि ओवरऑल आई थॉट इट वाज अ बैलेंस्ड रिजल्ट, बिकॉज कैलेयर वाज नॉट चैलेंज्ड एट ऑल, वन डाइक वाज नॉट चैलेंज्ड एट ऑल, Konate could have done thoda better for the Jackson goal, but it was okay. Robertson had couple of weak moments when Madueke started,
बट लास्ट में उसने एक जो 97th मिनट पे जो ब्लॉक मारा है वो मेरे को लगा था पक्का गोल है, एंड वुड हैव बीन वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज नूनेज का शोल्डर हुआ था चेल्सी के किसी प्लेयर के साथ, और उसने रेफरी ने फाउल दे दिया, मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था वो फाउल है, और एक्यूट एंगल भी होता तो नूनेज मतलब शॉट तो लेता था गोल पे, दैट वुड हैव बीन हाँ वेरी कंट्रोवर्शियल। बट एटलीस्ट रॉबर्टसन ने जो लास्ट में गोल वो करा, वही मेरे को एक प्रॉब्लम है स्लॉट से कि इट बिकम्स वेरी रिस्की इफ यू हैव ओनली अ वन गोल लीड, बट आई थिंक व्हाट ही इज लुकिंग फॉर इज लॉन्ग टर्म में व्हेन द सीजन प्रोग्रेसेस, अभी जो थोड़ा सा गेम मैनेजमेंट करके व्हेन ही सेव्स अ लिटिल बिट ऑफ लेग्स, that will help long term में, because we have seen this team burn out under Klopp or even under other managers जो थोड़ा intensity से खेलते हैं, so I think he's conserving very well, so it's a risk taking thing, या मतलब या it will, yeah, so he's managing well I think overall. चेल्सी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलना चाहूँ उसमें, तो आई वुड से कि इट वाज मैन वर्सेस बॉयज। लिवरपूल वर मैन एंड वी वर बॉयज, जो है भी सही। हमारा जो टीम है वो 23-24 ईयर्स से नॉर्मल एवरेज है। लिवरपूल हैज स्टेबल्ड प्लेयर्स कि वेन डाइक है, कैलेगर आ गया उनकी जगह, एलिसन नहीं खेल रहा है बल्कि, एंड ही इज डूइंग वेल। लास्ट 3 साल से ही इज डूइंग वेल फ्रॉम लिवरपूल। और उसके अलावा यू हैव ट्रेंट, एंड उसके अलावा यू हैव सला, जो हु कैन प्ले मैजिक मूवमेंट्स। सला वाज नॉट गुड इन द गेम, बट उसके जो मूवमेंट्स थे, जो पेनल्टी मिला उसको, और सेकंड जो पास उसको चला गया, जो सेकंड पास जो उसको कर्टिस जो उसको चला गया, जो असिस्ट चला गया, जो फर्स्ट टच खराब भी था, एज यू सेड करेक्टली। रॉबर्ट साल्चेन को उसको सामने आना था, क्योंकि वो पहली बार डर गया था। जो रिवर्स है ना, तेरे को दिनेश याद है, उसने रिवर्स रिप्ले कर दी थी, रेफरी जाके गया था बाहर वार देखने, और उसने बोला था वो हटा दे। तो क्या वो था, सांचेस बाहर आया था, तो वो फिर रिवर्स हो गया, तो ही वाज स्केयर्ड इन दैट एट दैट टाइम, रॉबर्ट सांचेस। तो सेकंड टाइम वो आगे आया ही नहीं, और कर्टिस जोन्स इजीली शिप अवे कर गया साइड में बॉल, इजी मतलब। लेकिन लिवरपूल के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो दे डिडंट क्रिएट मच, पर दिनेश जैसे हमने डिस्कस किया था कि दे आर क्लॉप व्हेन दे आर बिहाइंड, एंड दे आर मूव व्हेन Yeah, व्हेन दे आर 0-0 और वेयर दे आर ट्रेलिंग बैक। yeah. ऐसा जो हम लास्ट 2-3 मैचेस से हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इनिशिएटिव कोई नहीं लेती लिवरपूल, हाँ. बट बिल्कुल उनाई एमरी की तरह मिड ब्लॉक, ज्यादा बिल्कुल प्रेसिंग नहीं करनी है आगे जाके, पूरा मिड ब्लॉक रहना है, एंड मूवमेंट्स दे विल कैप्चर द मूवमेंट्स। जो सारा मूवमेंट कैप्चर कर दिया, जो कर्टिस जोन्स वाज गेम, एंड ग्रेवनबर्च, आई थिंक ही इज द बेस्ट मिडफील्डर ऑन द गेम, ऑन द मैच। ग्रेवनबर्च वो सबसे अच्छा नंबर 6 अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे अच्छा वो खेला ग्रेवनबर्च उस मैच में। तो अभी बट वो हम लोग प्रीमियर लीग में भी सबसे अच्छा ग्राउंडबॉजी खेल रहा है, मतलब ये प्रॉब्ली स्किल्स आर कमिंग हैंडी, क्योंकि हो सकता है कि कोई उस तरह का अटैकर, पाल्मर वाज द फर्स्ट टेस्ट एंड ही गॉट प्रोटेक्शन आल्सो कि स्ट्राइकर को खिला दिया, कि मेरे को लगता है जो टैक्टिकली एनालाइज करेंगे ना वो बोलेंगे कि नूनेस कितना अच्छा खेला था, क्योंकि नूनेस का को असिस्ट पहले तो मिलना चाहिए था, जो कर्टिस जोन्स को पेनल्टी नहीं मिली, दैट वुड आइडियली बीन कर्टिस जोन्स को शॉट लेना चाहिए था, वो नूनेस का पास था, पहले तो उसको असिस्ट मिलना था, बट उसने इतना वर्क रेट किया है कल, इतना इतना इंटरसेप्शन निकाला है, कितने तो गोल क्लियरेंस उसने किए हैं नूनेस ने, तो आई थॉट ही वाज लाइक नूनेस वाज रियली गुड, एंड इट वाज वेरी टैक्टिकल कि ये खेलना ही पड़ेगा तुमको, ऐसे ही खेलना पड़ेगा। आई मीन आई लाइक इट फॉर अ चेंज कि वी आर सीइंग अ वेरी टैक्टिकल अप्रोच, जो कि मोरिनियो या बेनिटेज टाइप के मैनेजर करते थे, गेम पर गेम वो थोड़ा चेंज कर देते थे, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ट्रेंट मिडफील्ड में जाएगा ही नहीं, एक भी पास नहीं दिया उसने कल, बट उसने 5 के 5 टैकल जीते हैं सांचो से, जबकि सांचो इनिशियली मेरे को ठीक लग रहा था, मतलब ही वाज क्रिएटिंग सम ट्रबल, ही वाज नॉट लूजिंग द बॉल वेरी इजीली, बट वन ऑन वन में भी ट्रेंट जीत गया, सो आई एक्चुअली थॉट कि टैक्टिकली ही टुक अ कपल ऑफ रिस्क स्लॉट, एंड टैक्टिकली मरेस्का आल्सो डिड अ कपल ऑफ थिंग्स कि गुस्टो को 10 में ज्यादा खिलाएंगे, या इवन रीस जेम्स को आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी स्टार्टिंग विद सच अ बिग गेम फर्स्ट एक साल स्टार्ट के है, बाद। रीस और लाविया दोनों का फर्स्ट स्टार्ट है फ्रॉम वन या रीस तो आफ्टर एक 1 साल ईयर। से आउट है ना, तो हाँ, आई रीस थॉट और कि लाविया लाविया दोनों का फर्स्ट स्टार्ट था 1 साल बाद। एंड इवन लाइक लाविया खेला था नेटो पहले मैच. नेटो को राइट से स्टार्ट नहीं करना, लाविया बिकॉज वापस व्हेन इंजर नेटो हुआ था. सब केम सब लेफ्ट से ही वाज नेटो वाज वेरी गुड, तो मेरे को लगता है अगर मैडुएके के बदले नेटो स्टार्टिंग से खेला होता तो Dinesh, just before you speak on the neutral from the neutral game, from the neutral perspective, एक चीज मैं पहले से बोल रहा हूँ माडुके के बारे में। तू जब वोल्स के बारे में उसने हैट्रिक मारा था, एवरीवन वाज हाइपिंग माडुके कि माडुके बहुत अच्छा है। मैं उससे ज्यादा इसलिए रेट नहीं करता कि वो पूरा वन ऑन वन ही इज डिसेंट, नॉट ग्रेट बट ही इज डिसेंट, वन ऑन वन ड्रिबल कर देगा, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है कि ही डजंट हैव द करेक्ट डिसीजन, कि वो जब शूट लेना होता है तब वो पास करना होना चाहिए, वरना जब पास होना होता है ही शूट्स। तो जो उसका डिसीजन मेकिंग है माडुए का, वो इट्स नॉट करेक्ट। तो एज यू सजेस्टली करेक्ट कि नेटो को उसकी जगह माडुए की जगह खिलाना ही चाहिए। एंड दिनेश, यू गो अहेड फ्रॉम द न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, से कैसा रहा न्यूट्रल गेम? पर्सपेक्टिव पहले मैं चीज एक एक आर्ग्यूमेंट्स को ब्रेक ऑफ करना चाहता हूँ. द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि जो सब्जेक्टिव डिसीजंस जो रेफरीज लेते हैं, ठीक है,
एक रेफरी ने अगर डिसीजन लिया है, आई कंप्लीटली एग्री, बट दे हैव अ पैनल ऑफ 4 people, 3 in VAR and 1 in the moment. I can argue for yellow cards, of course it's a subjective decision, yellow cards, but if it's a red, it should be a clear and cut, and also if it should be overturned by VAR, that means it should be clear and obvious. So I think the laws are clear on that at least, but on the way people interpret laws, I think that could be subjective. So that is why you could see I think sometimes Sancho was clear penalty. Sancho का तो clear Yeah, cut Sancho was a penalty. blind. It was like But a I think blind card. Saliba was a red card. I personally think Saliba was a red card. Yeah, if it's a red card, Tosin is also a red card. The हाँ, problem that I is agree कि Tosin is also red. I agree. मेरे को तो लगता है कि अगर कर्टिस जोन्स वाली पेनल्टी भी देते तो जैसे मेरे अगेंस्ट देते मेरी टीम को, तो आई वुडंट हैव कंप्लेन्ड अ लॉट, बिकॉज अभी वो लॉज नहीं है कि यू गेट द बॉल फर्स्ट, इसका मतलब कि पेनल्टी नहीं देंगे। अगर तुम किसी को फाउल करके इंजर्ड कर देते हो बॉल लेते हुए, सैंचेज वाला तो पेनल्टी था ही, सैंचेज हाँ, वाला tackle मेरे को लगा कि वो भी दे सकते थे। वो भी मतलब नहीं नहीं, एक सेकंड है, जो सेकंड जस्ट बिफोर यू कंटिन्यू, कि जो कर्टिस जोन्स को उसने पेनल्टी दिया था, नॉट कर्टिस जोन्स, फर्स्ट पेनल्टी किसको दिया था? फर्स्ट पेनल्टी किसको बंदे को दिया था? चेल्सी को ही दिया था ना। नहीं, फर्स्ट मतलब Chelsea पेनल्टी का कर्टिस जोन्स को दिया था। जोन्स को हाँ, दिया, कर्टिस वो तो जोन्स, बैड लक हो गया उसका, कोलवेल का। हाँ, वो उसको पता नहीं था। सेकंड, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि इन्फ्लुएंस रेफ किस लिए होता है, कि जो सला वाला, जो 30 सेकंड्स पहले सला वाला जो इंसिडेंट हाँ, हुआ था, वो और उसने हाँ, वो exactly. पेनल्टी नहीं दिया था, और सला का पूरा ये रिएक्शन आया था हाँ, वो अच्छे तो से, हाँ, वो और तो- उसमें वो- येलो, उसको येलो नहीं दिया, सला को येलो नहीं मिलता। हाँ। ये मैं उसने गलती क्या करी पता है? वो हाँ ना। पेनल्टी नहीं थी, बट वो हाँ। बॉक्स के बाहर फाउल था, साला वाला, वो फ्री हाँ, किक होनी उसने चाहिए थी। जब उसने रोका था, ही शुड हैव, पर तब फाउल था, हाँ। तब उसने प्ले ऑन दिया था, उसने एडवांटेज हाँ। दिया था। पर हाँ। जब उसने जो इन्फ्लुएंस किया था, जो फर्स्ट पेनल्टी उसको जो नहीं दिया था, उसी हम्म। वजह से वो कर्टिस जोन्स को भी उसने पेनल्टी दे दिया, जो हाँ। फर्स्ट पेनल्टी दिया था। ही शुड नॉट हैव गिवन, अगर वो नहीं देता तो वो पेनल्टी फर्स्ट भी नहीं था। पर मैं बोल रहा हूँ कि चलो दे दिया तो दे दिया, दैट्स ओके, बट सैंचो वाज क्लियर पेनल्टी। वार ने हाँ, देखा Sancho है, I thought was a इट वाज ए penalty, yeah. स्टैम्प्ड हिम, उसने पूरा स्टैम्प किया Stamp है, ट्रेंट ने पूरा सैंचो को स्टैम्प किया है अच्छे से। तो आई डोंट नो, पता नहीं चेल्सी ने कंप्लेन नहीं किया या फिर क्या, वी डिडंट डू मच। पर हाँ, मेरे को बहुत वियर्ड लगा कि उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। माइकल ओलिवर आया वार में, उसने देखा और क्लियर कर दिया 30 सेकंड्स में, 3 सेकंड्स नहीं बेसिकली। बट दिनेश कंटिन्यू। Yeah, I mean that's and also okay, that is the argument, right? कि मैं बता रहा हूँ, रेड कार्ड जो सलीबा को मिला है, राइट, वो मैंने बहुत बार चैलेंजेस देखे हैं, इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। इटली में इटली के अगेंस्ट, सॉरी नॉट, आई थिंक ड्यूरिंग द यूरोस, इटली में साका निकल गया था कियलिनी को छोड़ के, मतलब ही वाज द लास्ट मैन। कियलिनी मतलब विंग में था, बट कियलिनी वाज द लास्ट मैन। नहीं, साका लास्ट नहीं था वो वाला। साका लास्ट था ब्रो, साका विंग पे था, लास्ट था, विंग में था, बट लास्ट विंग पे था। हाँ, पर कियलिनी लास्ट था। बोनुची पीछे ट्रैक कर सकता है क्या? बताओ, उसके पेस में नहीं, पर वो लाइन पे वो सका से पीछे था, गेम के पीछे था वो। मैं करने, लेकिन लाइन के पीछे नहीं था, किसके नहीं, लाइन के पीछे सका को जो उसने रोका था, हाँ, वो हाफ के पीछे नहीं था, वो बिल्कुल कोने पे था। वो बिल्कुल लाइन टच कर रहा था, लाइन टच से उसको क्रॉस आना है। हाइपोथेटिकल, वो हाइपोथेटिकल कोई नहीं भाग सकता है ब्रो। हाइप्नोटिस जो बोलते हैं एंगल, वो वाला उसमें जाएगा, और यहाँ पे बलूची को सीधे मारना है, तो उसका मेरे को लगा कि सलीबा का भी सीधा था सलीबा का। मैं बोल रहा हूँ कि सलीबा को अगर उसने रेड दिया है तो ही शुड हैव गिवन रेड द टोसिन आल्सो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, कंप्लेन नहीं है। हाँ, टोसिन को मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। When you overturn, when it's a clear and obvious, that is what I'm saying right now. So I was relieved टोसिन बचा इसलिए, टोसिन की वजह से नहीं बचा है। टोसिन बचा इसलिए क्योंकि कॉलवेल भी वहां था, सलीबा वाले में कोई नहीं। कोलवेल पीछे था, लेकिन आई कंप्लीटली पकड़ लेता नहीं, बट बॉल ऐसे जा रही थी, कोलवेल ऐसे आ रहा था और जोटा को ऐसे जाना पड़ता नहीं, था। पर कोलवेल 5 यार्ड पीछे था, कोलवेल 5 यार्ड पीछे था उससे। हाँ, बट बॉल गोल से इधर जा रही थी ना, जोटा को इधर भागना था, कोलवेल को सीधा भागना था। और दूसरा रीजनिंग में सुन रहा हूँ इसमें गेम में, कि वो इस हमारे हाफ में हुआ था, ओन हाफ में हुआ था, और जो सलीबा का है वो थोड़ा ऑपोजिट हाफ में हुआ था। लाइन के 5 यार्ड्स पीछे और लाइन के 5 यार्ड्स आगे, इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं। I know, बता सकता हूँ जोटा वाला कहाँ पे कांटेक्ट था, उस वाले हाफ में था। नहीं, मैं बोल रहा हूँ रीजन दे रहा है, मेरे हिसाब से रेड है। अगर सलीबा को रेड देने तो ये भी रेड है। अगर हाउ कैन यू डिफरेंशिएट ऑन द अदर डे? इट्स नॉट क्लियर एंड ऑब्वियस, बिकॉज़ ये मैं बताता हूँ, दिस इज द ओनली डिसीजन इट्स गोना हैपन। क्योंकि ये हाफ लाइन वाला जो चीज़ है, मैंने बहुत बार देखा है, पीपल आर बीन फाउलिंग, द लास्ट डिफेंडर हमेशा फाउल करता है, ये मैंने बहुत बार देखा है। बट द थिंग इज कि इट्स नॉट क्लियर एंड ऑब्वियस दैट यू हैव टू ओवरटर्न, क्योंकि लाइन्समैन ने देखा है, सब ने देखा है, यू डोंट हैव टू ओवरटर्न टू अ रेड। That is what I'm saying. If it's clear and obvious, that means Tosin is also a clear and obvious.
So clear and obvious No, वाला but muddle हो गया है ना. my point is I कि think both are yellow reds. card. मेरे हाँ, हिसाब से both तो are reds. वो रेफरी को ही उठा के देना चाहिए हाँ. रेड, तब जाके तुम लोग देख सकते हो. नहीं पर उसकी वो गांड फट गई ना. रेफरी couldn't have the decision on him. हाँ, तो रेफरी को हो exactly. गया कि मैं डिसीजन नहीं लूंगा, मैं सेफ साइड रहूंगा, मैं येलो दूंगा, अगर मेरे को वार बोलेगा तो मैं रेड जाऊंगा. हाँ. और अभी दूसरी चीज, लेकिन इसमें जो सेकंड साइज है, हॉवर्ड वेब से जो याद है ना, हॉवर्ड वेब भी हाँ. कॉल पे था. हॉवर्ड वेब भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन उससे था contact वार भी के था, साथ, वो contact डायरेक्ट करके- कम्युनिकेशन था उसके. आई डोंट नो, कैरेकर ने भी कमेंट किया था हाँ, उसने कि delete कर दिया उसके बाद. हाँ कि इज हॉवर्ड वेब इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन. Yeah, I think of course he's influencing. I think not influencing, at least he would have said कि show it to the referee. नहीं, मैं Something. रोहन जो बोल रहे थे कि लॉज आर शिट, आई से लॉज आर शिट एंड रेफ्स आर शिट, बोथ आर Yeah. शिट. refs को नहीं अच्छा, कर ये मतलब बताना, मैं आप अगर सिर्फ ref ये shit weekend नहीं है, लोगे, पिछले तो weekend gravel match जाओगे को उससे- yellow क्यों नहीं इससे- दिया? पिछले मैं वही बोल रहा हूँ, पिछले Gravel match को तो yellow inconsistency- देना चाहिए भाई. पिछले सीजन वोल्व्स के अगेंस्ट 7-8 डिसीजन गलत गए थे. हाँ. बिल्कुल अरे क्लियर एंड क्लियर. सिटी छोड़ के सबके पास कंप्लेन होता है, बट मैं ठीक है, समझ रहा हूँ. मेरे इस पास मैच में रहते हैं ना. लिवरपूल अच्छा ये सबसे बताओ, बड़ा वार डिसीजन जो आज नहीं, तक का नहीं, गलत वो हुआ है वो तो subjective हमारे ही वाला साथ matter हुआ है छोड़ कि बोल दिया कि गोल है, फिर भी उसने नहीं गोल दिया, जो ठीक है, लुइस डियाज वाला subjective वाला टॉटनहम मैटर के छोड़ अगेंस्ट दो हुआ ना. था. अभी देखते हैं. हाँ. Why did Gravenberch did not get an yellow card? पेचुलेंस. अगर डेक्लन राइस या करता ना, Yeah. दो येलो मिलके खत्म, वहीं पे 2 रेड, क्योंकि उसने पहले काइसीडो को रोका, उसके बाद उसने बॉल पकड़ के, काइसीडो जा रहा था, उसने बॉल फेंक दिया, मतलब 2 येलो कार्ड ऑफेंस वहीं पे रेड. सबोसलाई को याद है तेरे को? हाँ, सबोसलाई वाला तो येलो था. सबोसलाई Second ऑलरेडी yellow था. नहीं, वो ऑलरेडी Second येलो yellow. पे था. हाँ. That's what I'm saying, second yellow. काइसेडो आगे भागा, काइसेडो बस पैर पे स्टेक इसलिए कर गया, हाँ. उसको सेकंड येलो नहीं मिला, वरना उसने पूछा ग्रैब बैक किया भाई, था अच्छे से. that is what I'm सबोसलाई का saying, bro. 3 मैच पहले सबोसलाई ने येलो पे जब किक किया था हाँ. मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, I know, that was a red card. मैं तो बोल ही रहा हूँ. मैं 2 चीज बता देता हूँ. जो आर्सेनल के Liverpool अगेंस्ट have मतलब 2 usually डबल येलो मिला था ना, bit डेक्लन राइस biased. को डबल येलो मिला था ना भाई लिवरपूल मतलब ये टाइटल डेक्लन हार राइस को. चुकी है रेफरीज की वजह से. बहुत डिपेंड करता है, साइकिल है, किसी के साथ नहीं, होता है, नहीं, किसी के नहीं, साथ नहीं होता. किसी I के agree. साथ I नहीं agree होता that I agree the cycle, but the positive on your side is 60-40, not the 50. नाउ इट हैज बीन. नहीं. हमको हमारा पता है ना रिकॉर्ड, जो सबसे लास्ट कम पेनल्टीज मिली थी हम लोगों को. मैं बोल रहा हूँ लास्ट सीजन जब टॉटनहम के अगेंस्ट जो गेम अगेंस्ट बिल्कुल रॉन्ग उसके बाद डिसीजन से. था, वो तो सबसे बड़ा मतलब मेरे वो ख्याल ऑन था, क्लियर ऑन था, उसको ऑफ दे दिया था. वो वाला ऑन ऑफ नहीं, वो बोला कि गोल है. ऑन ऑफ तो होते रहता है. नहीं, वो तो क्लियर एरर था, वो तो क्लियर एरर हाँ. था. बट लेकिन उसके बाद से, उसके गेम के बाद पे लिवरपूल आर गेटिंग द एडवांटेज. वो साइकिल है, वो you will- पहले बहुत बार हुआ है. उस तो 2 सीजन पहले स्टार्ट था कि सबसे ज्यादा पेनल्टीज लिवरपूल को मिल सकती थी अगर वार होता था. वार के पहले का भी ये है. सिटी को छोड़ के हर क्लब के पास इनफ एम्युनिशन है कंप्लेन करने का कि हमारे साथ नहीं, गंदा हो रहा मैं है बता एक देता हूँ एक ना, टाइम आर्सेनल का करके. जो मैं बता रहा था ना, आर्सेनल का जो चीज है, आई एम नॉट आई नो इट्स अ साइकिल, इट्स गोना अफेक्ट एवरीवन, बट जो आर्सेनल का जो केस हुआ, जो ट्रोसार्ड को जो रेड मिला और जो डेक्लन का रेड मिला, आई थिंक दैट दोस आर द 2 थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन. मैं बताता हूँ ना, उसके बाद होगा ही नहीं वो. उसके बाद वो होगा ही नहीं. ऑफ द मेरे को तो रूल ही खराब लगता है. मतलब दैट रूल इज सो शिट. ऑल आर्सेनल की रेड कार्ड्स है. आई थिंक रेस वाज नॉट अ रेड कार्ड. राइस वाला, ट्रोसार्ड वाला रेड था. नहीं, मेरे को उल्टा लगता है. मेरे को लगता है ट्रोसार्ड वाला रेड नहीं था, राइस वाला रेड था. मेरे को सेकंड येलो लगता है. फर्स्ट येलो आई कंसीडर कि फर्स्ट येलो नहीं देना चाहिए था, लेकिन जो उसको सेकंड येलो दिया था, जो उसने बार्ज किया था, पुश किया था, जो उसने नहीं, बट बार्ज के लिए नहीं मिला था उसको बॉल किक करने के लिए दिया आई उन्होंने. एम सेइंग कि दैट कुड हैव बीन येलो इटसेल्फ, जो उसने फाउल किया था, जो उसने बार्ज किया था. इसलिए आई कंसीडर वो वाली चीज. बस राइस वाली कंसीडर कि राइस को नहीं मिलना चाहिए था. मेरा उल्टा है. मेरे को लगता है कि राइस को पता था कि मैं हाथ लगाऊंगा तो फाउल होगा, और डेलिब्रेट था. ट्रोसार्ड मूवमेंट में था, उसने जब बॉल किक करा था वो 1 मिली सेकंड लेट था. और बार्ज पे कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा येलो देते हैं. तो मेरे को लगा कि ट्रोसार्ड को नहीं मिलना चाहिए था, बट राइस वाला तो उसने हाथ से बॉल मारा था जानबूझ के रोकने के लिए. कि आर्सेनल का ही वो केस होने वाला है, वो डबल येलो जो मिला था ऑफ द बॉल, मतलब जो किक करके वाला, जो लेटर ऑफ द लॉ बोला we will था ना. get to I Arsenal के indisciplinary indisciplinary जो है I Arsenal think team. okay, so that is Yeah. one argument की रेफरी के बारे में. एंड ऑल्सो जो स्ट्रेटेजिकली मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजी गेम्स देखे हैं यार. The level lack of quality is what I'm saying. Strategically भी लोग अच्छा खेल सकते हैं, बहुत अच्छे. मैंने इंटर मिलान और मैन सिटी वाला गेम देखा है, ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजिकली गेम. Move from ref सब चूते, हम सबको पता है. वो ref चूते, move from की what your opinion on the game. गेम के लिए तेरा ओपिनियन. गेम वाला भी बोल रहा हूँ ना, गेम वाला ही बोल रहा हूँ. स्ट्रेटेजिकली मेरे को क्या प्लीजिंग टू द आई थोड़ी था ये. स्ट्रेटेजिकली मैंने बहुत सारे गेम्स देखे हैं. आई हैव सीन मेनी. But it was not boring also. I don't think it was like how Arteta played against City. It was not that boring also. No, it's not boring at all. Arteta was given the hand to play like it. Okay, first half though it was one of the most exhilarating half. Okay. हाँ, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था. मैं सेकंड हाफ बोल रहा था. I mean, what I'm saying is you don't have to play attacking every time to
watch a game. I'm saying the lack of quality in each and every one. That is what I'm saying. If given a role, मतलब एक ज़माने में Hazard मतलब used to मतलब अटैकिंग भी नहीं था बट यूज्ड टू प्ले मैनिपुलेट इन द मिडफील्ड व्हेन चेल्सी वाज यार बट दोनों मैनेजर को 10-10 गेम भी नहीं हुआ है ना, तो यार हाउ दोनों विल दे मैनेजर्स हाउ को विल द नहीं भाई प्लेयर्स के भी से है बट ना आई यार एग्री लेवल भी तो है कि ना गेम वाज बोरिंग इन द सेंस कि लिवरपूल बैक था पूरा मिड ब्लॉक में था और चेल्सी के पास क्रिएटिविटी नहीं था। क्रिएटिविटी नहीं था कुछ भी नहीं था चेल्सी तो का वो क्वालिटी वाला नहीं है। यू शेप गेम था, चेल्सी का पूरा यू शेप गेम चल रहा था हाँ कि कोलविल से बादियाशेल जाएगा, बादियाशेल से राइट में जो टोसिन था उसके पास चला जाएगा, फिर गुस्टो मिडफील्ड आएगा पर दोबारा गुस्टो फिर वापस चला जाएगा रीस के पास। यार टैक्टिकली तो आई ब्रिलियंट थिंक गेम्स तो बहुत सारे होते किसी हैं ने मैन ऑन मैन किसी ने ट्राई नहीं किया कि उसको ड्रिबल पास कर सके कोई भी। एक्सेप्शनली उनाई एमरी वाले गेम्स बहुत टैक्टिकली बहुत अच्छे अच्छे होते हैं उसके एस्टन विला वाले बट नेसेसरली इट्स अ वेरी गुड टीम टू वॉच बट दिस वाज इन स्नूज फेस्ट मतलब चलो चल रहा है Nobody created no one in the wanted to take the both initiative कोई क्लियर कट चांस अगर रोहन इफ यू सी कि क्लियर कट चांस किसी भी टीम के लिए है ही नहीं वो नहीं है यार, लिवरपूल के 2-3 है, लाइक एक तो और तुम्हारा भी तो है जो एक एनकुंकू के पास आया था, एक लास्ट में, एक उसने क्लियर कट जैक्सन ने आई एम सेइंग क्लियर कट जोन्स को जो लास्ट पेनल्टी नहीं मिली वो तो गोल होना चाहिए था पहले, तो वो तो इजी गोल था, पता हाँ नहीं ही बॉल शुड को शील्ड क्यों कर रहा था पहले। उसके बाद से एक गैप्को ने शॉट लिया था जो जो मतलब बट दैट उसको नॉट अ मारना क्लियर चाहिए था, कट दैट नॉट अ बट क्लियर कट मैं सोचा मतलब क्लियर कट मारता है वो नॉर्मली। हाँ दैट इज अ होपफुल शूट था कि वो परफेक्ट बिल्कुल बट कर रहा कि टॉप राइट चला जाए टॉप बिन्स। लाइक आई सेड एक्सेप्ट आई एम सेइंग कि क्लियर कट चांसेस हाफ चांसेस आप अगर आप हटा दो हाफ चांसेस डोंट कंसीडर कि वो गैप्को का चांस शूट था हाफ चांस था कि उसके अलावा पाल्मर जो डीके हाफ से शूट ले रहा था वो हाफ चांस था जो पाल्मर के पास एक जो पास आया हाँ था पाल्मर एक मार हाँ सकता था, हाँ वो मार सकता था वो ही कुड हैव पास टू मार्डो के एक आल्सो लुइस डियाज मार सकता था लास्ट में जो लुइस के जो पास भी तो थोड़े सा हाँ। चांसेस बहुत दिनेश तू देखेगा कि यू विल रिमेंबर कि एक दो चांसेस थे तीन चार चांसेस तीन मैक्सिमम कोई चार मैं चांस ही बोल नहीं रहा हूँ था। तीन चांसेस थे तीन तीन या चार चांसेस थे बट आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो जो लेवल है प्रीमियर लीग का जो लेवल है मतलब चेल्सी जो टीम था वो चेल्सी ना रहा जो लिवरपूल जो मतलब क्लॉप के अगेंस्ट था वो लिवरपूल नहीं है तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि पीपल हैव क्लॉप चेंज्ड वर्सेस पेप या क्लॉप वर्सेस चेल्सी जो गेम्स हुए ना वो नहीं होंगे, वो एक्सेप्शन है, बट दिस वाज नॉट एज बैड एज पार्किंग द बस वर्सेस अ वेरी फ्री फ्लोइंग टीम। मतलब मेरे को पर्सनली टैक्टिकल गेम बहुत पसंद है, जैसे मेरे को याद है कि एक बार यूनाइटेड और मैड्रिड खेल रही थी तो फिल जोन्स को मार्क भेज दिया था कि तुम आज खाली रोनाल्डो को मार्क ही करोगे, तो उसमें और वो जो यूनाइटेड जीत भी गई थी। उस तरह आर्सेनल ने एक बार बार्सिलोना को टिकी टाका में मारा था, जो जैक विल्शेर ने बहुत अच्छा खेला था और पर्सी ने बाहर से गोल मारा था प्राइम बार्सिलोना को। वो टैक्टिक टिकी टाका टैक्टिक्स को टिकी टाका टैक्टिक से हराया था। मेरे को एक अच्छे से याद है बेनिटेज, मोरिनियो, वेंगर और फर्ग्यूसन जब चारों खेलते थे वो सारे के सारे गेम टैक्टिकल होते थे। तो आई पर्सनली लाइक दैट फ्लेवर, मतलब मेरे को पसंद, आई डोंट कंसिडर इट एज बोरिंग एज वन टीम वर्सेस पार्किंग द बस टाइप, तो इट बिकम्स अ प्रेफरेंस टाइप। बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दिस फ्रॉम लिवरपूल एनीवे। जब मेरे को समझ आएगा कि ट्रेंट पीछे खेल रहा है और मैकलिस्टर बेंच पे है तो हमारा नहीं जाना है मिडफील्ड से, इट विल ऑलवेज बी लेफ्ट विंग राइट विंग और पर्सनल ब्रिलियंस पे कोई मारेगा तो मारेगा। तो मेरे को पता था कि सोबोस्लाई शॉट लेगा नहीं, तो गैप को रॉबर्टसन कुछ कर लेंगे या साला अकेले कुछ कर ले तो कुछ आएगा, क्योंकि ग्रेवनबर्च भी पीछे ही खेल रहा है, नूनेज भी पीछे ही खेल रहा है। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मच, बट आई थॉट टैक्टिकली आई डोंट थिंक मैरेस्का आल्सो डिड अ लॉट रॉन्ग इन द बिगनिंग, क्योंकि मेरे को जैसे हितेश बोल रहे हैं ना कि एंजो ने स्टार्ट नहीं किया, मेरे को लगा कि स्टार्टिंग में काइसेडो एंड लाविया मिडफील्ड वाज एक्चुअली ओवरपावरिंग। पाल्मर को लोग बोल रहे हैं गंदा खेला, बट उसको दो लोग मार्क कर रहे हैं, तो आई डोंट लाइक ब्लेम हिम अ लॉट कि यार उसने तो एकदम भाग ही दिया, वैसा नहीं मानता। बट आई थॉट काइसेडो That's why Chelsea blame Chelsea fans blame कि जो विंगर्स हैं माडुएके और सेंचो के पास तो ने सांचो ठीक स्टार्ट किया था यार हितेश, नहीं बट सांचो नहीं स्टार्टिंग। सेंचो ने टेक ऑन नहीं किया किसी को भी ही डिडंट क्रिएट मतलब उसने क्या बोलते सेफ खेला ऑलवेज ही इज टेकिंग द पैरेलल हाँ पास वही कि सेफ जो अंदर सेफ के हाँ पास है और नीदर ही डिडंट टोकन द कि एटलीस्ट ही ट्रेंट को तो तुम ओवर पावर करोगे ड्रिबल पास करोगे एटलीस्ट यू विल थिंक दैट कि तुम शोल्डर ड्रॉप करके ट्रेंट को तो तुम करने चाहोगे बट दैट व्हाट की सेंचो डिडंट डू। और दूसरे माडुआ के भी कुछ नहीं किया रॉबर्टसन पर ट्रैकिंग बैक अच्छे से रॉबर्टसन ट्रैकिंग बैक कर रहा था उसके साथ और दो ऊपर तीन बार मैडवेक बिहाइंड का द लाइंस प्रॉब्लम किया क्या था है, शायद हाँ, दो बार बिहाइंड द लाइन किया मैडवेक का था वही प्रॉब्लम है कि वो चला तो जाएगा बीट करके, बट फिर पर फिर क्रॉस वॉस नहीं कर हाँ सकता वो अच्छे से, हाँ हाँ। ही विल टेक द डिसीजन मेक राइट। Yeah, बट या अभी द लेवल ऑफ क्वालिटी जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इवन आर्सेनल को भी मैंने क्रिटिसाइज किया जो लेवल ऑफ क्वालिटी जो पिछली सीजन में हमने किया वो इस सीजन को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं और एंड द थिंग इज कि ऑल इन ऑल इंग्लिश प्रीमियर लीग आई थिंक इट्स बिकम मोर अबाउट द मैनेजर्स लेस अबाउट द प्लेयर्स मतलब या दैट मैनेजर्स इज ने ट्रू। मतलब थ्रोट को पकड़ के दे डोंट वांट देम टू गो आउट ऑफ देयर गेम और इवन कि कोई अभी मतलब मेरे हिसाब से कोई मैवरिक प्लेयर बन ही नहीं सकता अभी
या तो हाँ मतलब कोई people have now they want people to follow their plain set of rules, but I think that is what I think it's a norm away from what Real Madrid and Barcelona are doing. that's what people have theory on Palmer also कि वो चला गया क्योंकि पेप किसी भी सिंगल प्लेयर को इतना फ्रीडम से एक्सेल अरे नहीं करने फोरन को देता है। चोद रहा है नहीं, वो अभी। पर पेप इज पर फकिंग फोरन ब्रो। ब्रो मैं एक चीज बोलूंगा कि स्काई स्पोर्ट्स के सारा नैरेटिव आ रहा था जब पाल्मर ने ये 4 असिस्ट दिए थे एक मैच में, और एक मैच में 4 गोल मार दिए थे और हैट्रिक असिस्ट दिया था उसने वुल्व्स के अगेंस्ट। तब मैच की सब कर रहे थे इज ही बेटर देन ईडन हजार्ड, वो ऐसा करके कि स्टैट्स के टर्म्स में कि पाल्मर के बारे में। बट लेकिन उस टाइम बोलेगा कि जब सारे के सारे मैचेस थे वो ब्राइटन के अलावा जो 4 गोल वाले थे, ही वाज नॉट दैट गुड। उसमें वो एक भी मैच अच्छा नहीं खेला। जो उसको वुल्व्स वाला जो 6-2 जीते थे वो उसको सिंपल पास था, वो उसने माडोको को इजी पास था, वो ऐसा कुछ क्रिएटिव पास नहीं दे रहा था वो वाला मैच में। लेकिन मैं बोलूंगा ही वाज नॉट दैट गुड, वो कंट्रोल नहीं कर रहा था गेम को, ही वाज इरेटिक। तूने पूरे मैच में देखा होगा कि वो नेटवर्क करना ट्राई करेगा हमेशा और हो जाता है, वो हमेशा टेक ऑफ कर देता है। पर इस सीजन नहीं कर रहा है, हमेशा वो बॉल लूज कर रहा है पाल्मर फर्स्ट 9 गेम्स। तो ही इज बिट इरेटिक फ्रॉम द लास्ट सीजन, तो ही इज नॉट दैट ग्रेट। स्टैट्स आ रहे हैं, उसके नंबर्स आ रहे हैं अभी भी इस सीजन में, बट कंपेयर टू लास्ट सीजन आई थिंक कि उसके पास इतना फ्रीडम नहीं मिल रहा है जो उसको पहुंच नहीं दिया था लास्ट सीजन आई थिंक। बट आई डोंट कि बिल्कुल उसका स्टैगमेटाइज्ड सिस्टम है उसका मरेस्का का, तो बिल्कुल पाल्मर को नंबर 10 ही रहना है, उसको यही रहना है, उसको विंग पे नहीं जाना है, इस साइड नहीं जाना है, वहां नहीं जाना, उसको रन्स नहीं लेना है। तो आई थिंक आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, बट ही इज नॉट प्लेइंग दैट वेल ऑल द सीजन, नॉट नहीं, कंपेयर टू वन और मैं टू थोड़ा मैचेस। डिसएग्री करूंगा। होता क्या है कि जब एक प्लेयर ब्रेकआउट करता है ना तो अगले सीजन जो तुमको पता होता है कि तुम्हारी टीम का मेन प्लेयर यही है, No, but तो he उसको looks लोग erratic. थोड़ा He looks erratic. उसको लोग थोड़ा फिगर He आउट is कर not लेते हैं। looking. He is not looking composure. उसके पास कंपोजर नहीं दिख रहा है, वो वो तो पिछले खैर सीजन था। बहुत बहुत यंग है यार, उसका सेकंड ब्रेकआउट सीजन है ये। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि चेल्सी इज वन ऑफ द फ्यू टीम्स, जो दिनेश बोल रहा था बिगनिंग में कि सारा टीम सिस्टम टीम बन रहा है, सारा टीम मैनेजर टीम बन रहा है। चेल्सी इज स्टिल वन ऑफ द फ्यू टीम्स जिसमें एक प्लेयर के अराउंड टीम बनी हुई है। वो इराटिक है, चलो वो रिस्क टेकर है तो वो बॉल लूज भी करेगा ना, वो थ्रू पास देने जाएगा तो बॉल लूज करेगा, बट एटलीस्ट चेल्सी इज प्लेइंग विद दैट सिस्टम जो ओल्ड सिस्टम था। क्योंकि आर्टेटा तो एकदम उसका मतलब चला है ना पेप का। क्लॉप थोड़ा डिफरेंट था कि मतलब वो बोलता था कि इंटेंसिटी लाओ, उसके बाद अपना पर्सनल ब्रिलियंस दिखाना तो दिखाओ। बट स्लॉट इज अगेन मोर टैक्टिकल, स्लॉट ने कल ट्रेंट को नहीं आगे खेलने दिया ना। सो इट व्हाट दिनेश इज सेइंग इज ट्रू, इट इज बिकमिंग मोर ऑफ अ सिस्टम काइंड ऑफ अ थिंग। चेल्सी एंड पाल्मर इज द ओनली एग्जांपल जहां पे एटलीस्ट एक प्लेयर के हिसाब से गेम चल रहा है। उसके अपने रिस्क हैं कि वो इंजर्ड हो गया तो क्या होगा एंड ऑल। नहीं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेरा से इज मेरा आई टिस्ट लाइक इट, लाइक आई लाइक टू सी कि वो तो जब खेलता है पाल्मर तो। मेरा बस पॉइंट ये था कि इफ यू रिमूव द नंबर्स, कि जो उसका प्लेइंग स्टाइल है, जो प्लेइंग जो पूरा इन्वॉल्व है इन द होल मैच, मैं बोल रहा हूँ कि पूरे मैच में वो इन्वॉल्व हो रहा था, ही वाज नॉट इन्वॉल्वड इन द होल मैचेस, वो आउट ऑफ द गेम था कि 30 मिनट्स को यू डिडंट सी द पाल्मर, आधा घंटा कहाँ है पाल्मर। पर लेकिन लास्ट सीजन इफ यू कंसीडर हिम कि ही वाज ऑलवेज टेकिंग ऑन द बॉल मिडफील्ड से, कि बॉल फुट ऑन द बॉल, जो बोलते हैं ना कि कंपोजर वाले जो प्लेयर्स नंबर 10 यू कॉल देम, कि दे फुट ऑन द बॉल, तो ही इज नॉट फुटिंग ऑन द बॉल फॉर दिस सीजन, दैट्स व्हाई आई एम तो कंप्लेनिंग अबाउट लाइक आई पाल्मर। सेड लास्ट सीजन इट वाज अ मिस्ट्री ना, किसी को पता ही नहीं था कि ये फ्री रोल में खेल रहा है, पोचेटिनो गंदा खेल रहा है बट ये अच्छा खेल रहा है, तो दे हैडंट फिगर्ड हिम आउट। दिस सीजन दे हैव फिगर्ड हिम आउट अ लिटिल बिट। बट मेरा पॉइंट यही है कि चेल्सी इज अ फोर्थ टीम, चेल्सी में भी मैक्सिमम फोर्थ, तो उनके बुरे गेम होंगे, बुरे फेज होंगे। लास्ट सीजन तो बहुत गंदे थे, और उसके हिसाब से पाल्मर इधर है, चेल्सी इधर है। सो स्टिल अभी जो तू बोल रहा है कि उसमें डिप है, उसके हिसाब से भी सो आई थिंक इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज। जो दिनेश बोल रहा था कि it has become a system वाला चीज, like I don't personally like watching Arsenal except for Saka and Odegaard, क्योंकि यही दो प्लेयर होते हैं जो मैं देखता हूँ कि जब साका राइट विंग पे बॉल लेता है ना तो 4 प्लेयर खड़े होंगे, वो ऐसे गैप ढूंढ के गोल मारता है। या ओडेगार्ड है, दैट्स व्हाई आई थिंक दैट दे विल रियली स्ट्रगल नेक्स्ट गेम, बिकॉज ओडेगार्ड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो 8 में पोजीशन में रह के 10 वाला गेम खेलता है, हमेशा फॉरवर्ड पास देता है। बट अदर देन दैट इवन आर्सेनल प्ले वेरी वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी वेरी मतलब डिसिप्लिन, तो उतना मजा नहीं आता। लिवरपूल में तो चलो यू हैव प्लेयर्स लाइक दैट, तो कुछ बोल नहीं सकते कि स्लॉट का But सिस्टम है the कि प्लेयर्स कर रहे हैं। only thing I complain about Liverpool कि Gravenberch if he gets injured या फिर Gravenberch अगर मिस करता है तो then your की base of the system number 6 से फिर कोई बचेगा नहीं।
उस वे भाई में। हम तो आई ऑलरेडी डोंट आई ग्रेवन डोंट बर्च नो। भी अच्छा खेल रहा है, वो भी नहीं नहीं, प्लस पॉइंट ही है, मैं बोल रहा हूँ बोनस ही कि है हमारे लिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्लॉट ने जो ग्रेवन बर्च को पूरा अपने मोल्ड में लेके आ गया कि हाँ तू मेरा ही बच्चा है अच्छे से, आई विल ट्रीट यू अच्छे से, कि मतलब बिल्कुल कोच करूंगा मैं, ये कर ये कर ये कर, एंड ही इज डूइंग दैट। क्योंकि नीदरलैंड्स टीम ने उसको पिक भी नहीं किया था, पता नहीं वो कौन कौन से बंदे थे भाई, वो दो नाम याद है तेरे को दिनेश, वो मिडफील्डर्स हाँ। नेदरलैंड्स के, मेरे को 1% भी याद नहीं, वो अयाक्स में था, एक फेयरनॉर्ड में था, वो हम्म, मिडफील्डर जो यूरोज में जो खेल अभी रहे थे। वो एसी मिलान में है ना। हाँ तो बट लेकिन ग्रेवन वो खेल भी नहीं रेंडर्स, रहा था, और रेंडर्स। लास्ट सीजन भी क्लॉप ने भी पिक नहीं किया था, बट दिस सीजन की ही टुक एट द बेटन अच्छे से, एंड नाउ ही इज परफॉर्मिंग वेल, बट लेट्स सी कि हाँ हाउ कंपोज एंड हाउ विल जेल विद यू, बट स्टिल हाँ, बट लाइक लाइक देयर आर स्टिल इट्स अ क्वेश्चंस फॉर बोनस। लिवरपूल। मतलब या हम, हमारे नजर में तो बोनस है, हम क्योंकि ग्रेवन बच सिक्स है भी नहीं, इन्होंने खरीदा भी नहीं, इन्होंने सबको जाने भी दिया। व्हाट हैज हैपेंड इज कि उसके कुछ स्किल सेट्स हैं जो सिक्स में उसको फेवर करते हैं। जैसे इज अ वेरी गुड कि वो बॉल आती है ना तो वो डमी मार के आगे निकल जाता है, विच इज हिज फेवरेट थिंग विच ही डज, कि वो रन करता है। तो उसको सिक्स में ना थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता है। क्लॉप उसको खिलाता था एट लेफ्ट विंग से, तो ड्रिबल करता था या शूट करता था वो तो ठीक था, बट टाइम कम होता था पास वास करने का। सिक्स में उसको थोड़ा ज्यादा मिलता है तो वो मूवमेंट करता है, तो आई दैट्स थिंक व्हाई दैट ही इज स्किल अ इज गुड वर्किंग। फुटबॉलर, ही इज अ गुड हाँ, फुटबॉलर, इज अ ही गुड इज अ फुटबॉलर। गुड फुटबॉलर, पूरा प्रेस रेजिस्टेंट है वो बंदा, बिल्कुल हाँ, कि ही कांट टेक द बॉल फ्रॉम द यू, कि यही तुम उसको बायर्न में भी प्रॉब्लम हुई थी तुमने क्योंकि वो क्लॉप वाले पोजीशन में तुमने खेलता था। लास्ट मैचेस और उसके पिछले 3 मैचेस में हमेशा देखे गया होगा, वो हमेशा रोल बॉल को रोल होने ट्राई करता है और एग्जैक्टली, एकदम से और टर्न ले भागता लेता है, है, और एकदम से भागता है। टर्न ले हाँ लेता है, दैट्स व्हाई हाँ। ग्रेवन बच इज वेरी वेरी ही इज प्लेइंग वेरी वेरी गुड इन दिस। बट जस्ट बिफोर टू आर्सेनल वर्सेस बोर्नमथ, द शॉकिंग रीजन रिजल्ट, जस्ट वांट टू आई आस्क यू कि दिसंबर तक इफ यू इन द टाइटल रेस, कि दिसंबर तक यू आर, क्रिसमस तक एटलीस्ट जब देखते हैं कि यू आर जस्ट 1 or 0.2 बिहाइंड मैन सिटी, बिल्कुल चेज में हो तुम, बिल्कुल यू इन द चेज बैंक, तो सेकंड हाफ यू विल गो फॉर नंबर 6 और मोर प्लेयर्स इन द सेकंड हाफ, और देन यू विल गो फॉर कि जनवरी के बाद वी विल गेट अ लेफ्ट बैक, we will get a probably a midfield number 6, or we'll get a attacker, you don't need हम्म, attacker, किएसा आ गया है, तो आई रिमेंबर किएसा आ गया है, तो नाउ यू डोंट नीड दैट, और एक सेंटर बैक, अगर इसमें से तीन में से इफ यू डोंट पिक ईदर टू, तो यू विल स्ट्रेंथन योरसेल्फ, और सेकंड हाफ में यू विल स्टार्ट की पुश ऑन नाउ, बिल्कुल जो लुइस डियाज ने किया था। आई रिमेंबर कि यू वर नॉट दैट ग्रेट, तुम यू वर डिसेंट, यू वर एवरेज, अबव एवरेज दिसंबर तक, क्योंकि माने और सलाह का बिल्कुल रिदम बैठ नहीं रहा था, बट लेकिन दियाज आया, माने को तुमने सेंटर फॉरवर्ड लिफ्ट किया, और सरा उसको दियाज को लेफ्ट विंग पे लाए, एंड फ्रंट थ्री वो बहुत अच्छा चला सेकंड हाफ बिल्कुल, एंड क्वाड 4 के लिए जो बोल रहे थे, एंड यू एंड अप फॉर द टू एटलीस्ट टू ट्रॉफीज, तो वही चीज, हाउ डू यू सी द सीजन नाउ? या सो एब्सोल्युटली अग्री। वो डियाज वाले सीजन में तो मैंने भी बोला है, या क्लॉप ने खुद भी बोला है कि वो सीजन हम सेकंड हाफ में हमने एंड यू इतना अच्छा फक्ड खेला है ना। एंड यू फक टॉटनहम, वो साइनिंग, आई रिमेंबर कि हाँ वो लुइस डियाज बिल्कुल मेडिकल में हाँ, था, जो वो विलियन वाला विलियन ही वाला है। सीन था, विलियन वाला सीन था। नहीं, बट उसमें तो क्लॉप ने ही बोला है कि अगर हमने डियाज को समर में साइन किया होता ना, तो हमने एक दो मैच जैसे ब्रेंटफोर्ड वगैरह से ड्रॉ कर लिया था। सेकंड हाफ में तो हम अनटचेबल खेल रहे थे क्योंकि हमारे पास छह फॉरवर्ड थे ना। ऐसा नहीं था कि ये तीन आगे खेलते थे, पीछे भी जोटा, फर्मिनो और शकीरी भी तो खेलते, मतलब एक और कोई था, आई डोंट रिमेंबर हु, मे बी इट वाज ओरिगी, मतलब तीन और एक्स्ट्रा बैठे होते थे। तो वी हैड लाइक वेरी गुड ऑप्शन व्हेन डियाज केम। बट आई डोंट थिंक दिस टीम इज दैट। आई स्टिल थिंक कि अपना वो जो है जो नहीं आया था रियल सोसिएडाड से यार, अपना स्पेन जुबिमेंडी। वाला, हाँ जुबिमेंडी आएगा बिकॉज उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट उसका न्यूज डिससेटिस्फेक्शन का बहुत आ रहा है। तो आई स्टिल थिंक ही कैन कम, बट मैं बोल रहा अदर। हूँ कि आई एम जस्ट सेइंग कि मैन सिटी इज कमिंग फ्रॉम हिम, क्योंकि रॉड्री इंजर्ड एसीएल है, तो रॉड्री को हाँ, दैट जरूरत इज है ट्रू। जुबिमेंडी, और सिटी तो बट आई थिंक बट एक्चुअली रॉड्री स्टिल इंजर्ड पे मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि जो तू बोल रहा था ना कि सिटी एक पॉइंट पीछे रहती है एंड लिवरपूल स्टिल इन रेस। अगर सिटी रॉड्री के इतना आउट होने के बाद भी आर्सेनल या लिवरपूल से सिर्फ एक दो पॉइंट ही पीछे रहती है ना, तो वो जीत जाएगी। इज व्हाट आई फील, क्योंकि रॉड्री इतना बड़ा मिस है ना। अभी वो जितना गंदा खेल रहे हैं ना, वो सिर्फ रॉड्री के नहीं होने से खेल रहे हैं, प्लस उनका डी ब्रायने भी इंजरी प्रोन है। तो अगर इनको इंजरी होने के बाद भी दे आर एबल टू मैनेज, और जबकि अल्वारेस भी चला गया, तो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हालैंड। तो आई डोंट थिंक एनीवन कैन स्टॉप देम फ्रॉम विनिंग, क्योंकि फिर वो मैनेजरियल चला जाता है। तो इट इज डिपेंड्स मोर ऑन सिटी। आई डोंट थिंक लिवरपूल नीड्स अ लेफ्ट बैक फॉर नाउ। आई थिंक वो सिचुएशन ठीक, सेंटर बैक भी नहीं, बट डीएम is something which we will be found out अगर ग्रेवनबर्च इंजर्ड हुआ या ऐसी टाइप की ओपोजिशन आ गई जिसमें कि एकदम प्रोफेशनल डीएम चाहिए जो थोड़ा सा फाउल करे, डिस्ट्रॉयर टाइप खेले, देन वी विल स्ट्रगल। एंड जैसे जैसे सिटी से जो लिवरपूल का गेम होगा उसमें भी मे बी इट विल बिकम वेरी क्लियर। बट आई लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक स्लॉट हैज दैट
thing on his head right now. He genuinely does not think he can win the title. He wants to be as close to it as possible. और अगर और जो तू और बोल रहा है, और और लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा इसमें हाँ, कि टिल नाउ 8 पॉइंट्स 8 गेम्स प्रीमियर लीग में हुए थे, तो हम्म, यू हैव अ काइंड ऑफ अ बिलो एवरेज रन, नॉट परफॉर्मेंस हाँ, वाइज, डिसेंट, हाँ, हाँ, टीम वाइज आई एम सेइंग। यूनाइटेड और चेल्सी ही बड़ा की टीम हम खेले हैं, एग्जैक्टली हाँ, कि यूनाइटेड को तो हाँ, वी डोंट कंसीडर हिम, नहीं, चेल्सी बट फॉर लिवरपूल इट विल ऑलवेज बी अ या बिग गेम एट ओल्ड बट ट्रैफर्ड, तो चेल्सी वाला गेम था वो मैन वर्सेस बॉयज, दैट्स व्हाट ही सेड कि हाँ, बिल्कुल कि बट मैच्योर सीजन था, पर till it did स्टिल not come, it was a very good game, right? दो Because Chelsea दो have been चीज, doing well. हाँ दैट्स व्हाट की जो एनालाइज कर सकते हैं कि दो चीज होने वाले हैं, दो चीज हो सकती है, एक तो बिल्कुल रश फिक्चर आने वाला है, बिल्कुल हर 3 दिन में खेलने वाले हो तुम अब से फ्रॉम नाउ ऑन, वो हम्म, थर्ड जो इंटरनेशनल ब्रेक आएगा नवंबर में उसके बाद से, फिर हम्म, फेस्टिविटी सीजन भी आता है जो क्रिसमस के टाइम बहुत सारे बॉक्सिंग डे होता है, फिर न्यू ईयर और को ज्यादा, होता हाँ, है, एंड जो स्क्वाड है वो थिन है, जो आर्सेनल इस टाइम स्ट्रगल कर रही है, सेम थिंग आर्सेनल बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है, वो चीज कि साका का रिप्लेसमेंट नहीं था, ओडेगार्ड का रिप्लेसमेंट नहीं था, एग्जैक्टली। तो आई थिंक लिवरपूल के सामने वो चीज दैट इज अ क्वेश्चनेबल येट स्टिल, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड हाँ, तो ये ट्रांसफर तो छोड़ ही दे, ट्रांसफर तो एकदम डिसगस्टिंग है, बट एक चीज मैं डिसएग्री करूंगा, आर्सेनल का जो बंदे इंजर्ड होते हैं या नहीं आते हैं ना, उनका ड्रॉप ऑफ बहुत ज्यादा है। जैसे सलीबा से क्विरियोर है ना, जो जो अभी लास्ट मैच में सेंटर बैक खेला है, वो कोई कंपटीशन ही नहीं है, मेरे को समझ में यू नहीं है आल्सो कैलाफोरी। आपके साथ भी सेम है ब्रो, पर अगर वैन नहीं डाइक चला ब्रो, गया, नहीं वैन डाइक चला गया तो यू वुड हैव अ कोनाटे और गोमेज का तुम नहीं, हाँ, तो कोनाटे गोमेस, गोमेज गोमेस इज बेटर देन कोनाटे, क्विरियोर मैं इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो कीवियर हटा दो क्योंकि उनका जो रिप्लेसमेंट है वो बेन वाइट है और टिम्बर है, नहीं, वो बेन चले वाइट गए, तो राइट बैक खेलता है वो और टिम्बर लेफ्ट बैक खेलता है, एंड कैलाफोरी आएगा, एंड कालीफियोरी भी कैलाफोरी सेंटर बैक आ सकता है, तो वही आएगा। सेंटर उनके पास डिफेंसिव में है। पर मैं आर्सेनल के बारे में बोलूंगा कि सॉरी लिवरपूल के बारे में लास्ट चीज की मतलब कि अगर जो ड्रॉप ऑफ है वेन डाइक से वो बहुत ज्यादा बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉप ऑफ बहुत ज्यादा है, सलाह के बाद जो ड्रॉप ऑफ हो जाएगा बिल्कुल ट्रेंट से ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, तो ये 3 ड्रॉप ऑफ बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं बे, ट्रेंट से तो ब्रैडली ट्रेंट का तो ड्रॉप हमने देखा है 3 महीने लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एक भी पॉइंट लूज नहीं किया। आई डोंट थिंक ट्रेंट वाला इज नॉट, आई एम नॉट कंसर्न। और कैलम हडसन ओडोई फक्ड हिम लाइक थ्राइस ऑन दैट अरे भाई मैच। वो बच्चा है, बट हाँ, उसने वो और चेल्सी का अगेंस्ट गोल मारा भाई, वो तीन सीएचओ के महीने पास अच्छा खेला है स्पेस, वो। सीएचओ के पास स्पेस भी नहीं है, एंड बैडली पे यू अरे डोंट बिल्कुल एक ट्रस्ट नहीं कर मिस्टेक सकते। भाई, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ प्रेफरेबल या थिंग, बट मैं बोल रहा हूँ ये मेरे को नहीं लगता, देख ऑन पेपर जो तू बोल रहा है मैंने भी हमेशा वही बोला है कि ट्रेंड गया तो आई वाज लाइक कि ये तो गया सीजन पूरा, बट ब्रैडली ने 3 महीने अच्छा खेला। सिमिलरली आई वाज नॉट वेरी बिग फैन कि चलो सबोसलाई कितना भी गंदा खेलता है, बट वो एज अ 10 खेल सकता है, तो मेरे को लगता था कि सबोसलाई गया तो क्या जोन्स खेलेगा क्या, अब सब जोन्स भी ठीक खेलने लगा है, तो फॉर नाउ आई विल नॉट से मच, क्योंकि मेरे को भी ऑन पेपर लगता है कि साला इज द ओनली वन आई विल अग्री टू, नॉट बिकॉज बाकी लोग खराब खेलते हैं, इट्स बिकॉज ही इज द ओनली लेफ्ट फुटेड प्लेयर ऑन द राइट साइड, जो मैं बोलता हूँ आर्सेनल ब्रो के लिए। लास्ट तो पॉइंट मेरे पास ये कि कोनाटे और कोन्जा का जो सेंटर बैक पार्टनरशिप है वो बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज्यादा आई खराब है, अग्री बट जो चेल्सी के साथ हो रहा है, क्योंकि चेल्सी के पास थियागो सिल्वा नहीं है जो बिल्कुल गाइड कर सके, दैट्स व्हाट आई आई मीन। अग्री बट आई थिंक आर्सेनल स्टिल हैव वर्स इफ सलीबा गेट्स इंजर्ड, बिकॉज उनका एक तो कन्वर्टेबल है, मेरे हिसाब से कि काली फ्योरी और बट कैलिफोरी नया है, प्लस वो गैब्रियल कैन कन्वर्टेबल प्ले है। डिसेंटली, और वो बंदा हाँ, विंग्स, और सबसे बड़ी काली फ्यूरी का दिनेश कमेंट करेगा कि सबसे ज्यादा वो विंग्स पे ही बीट करता है वो बट बंदा, ऐसे कैलिफोरी ही इज सेंटर बैक खेलेगा ही इज तो अ वेरी वेरी जिनचेंको गुड लेफ्ट बैक फुटबॉलर। खेलेगा ना, तो ये भी तो सोच, अगर कैलिफोरी सेंटर खेल रहा है तो जिनचेंको लेफ्ट बैक खेल रहा है, तो वो एक अलग ओपनिंग मिल जाती है ब्रो फिर। दे हैव ऑप्शंस, ब्रो दे हैव टोमियासो, दे हैव टिम्बर, टोमियासो इज इंजर्ड टिल वेरी लॉन्ग टाइम अभी, दे हैव टिम्बर, नहीं आ दे रहा है हैव वो। बेनफिट, दे हाँ, हैव। टिम्बर इज अ वेरी गुड हाँ प्लेयर, तो बट अगेन डिफेंसिव में आर्सेनल के पास है ही नहीं, यू कांट डिस्कस कि डिफेंसिवली आर्सेनल के पास वही है। बट दिनेश जस्ट बिफोर वी मूव टू आर्सेनल, दिनेश लास्ट पॉइंट और लास्ट एनालिसिस ऑन द गेम। Yeah, I think it's a tactically Liverpool did what they're doing. I या think they have been doing for the 8 games. They are not. I've never seen a Liverpool team this tame for a long time. After a long time, okay, that is what Liverpool's and slots game is, and it has been perfectly fitting for the ideology, like what they are doing. But I want Liverpool in case of adversity, like adversity में क्या करेगी Liverpool? I think I want to see that kind of a Liverpool game because जो भी गेम्स आपने फेस किए, आई थिंक either the other team were trying to dominate you and you fucked them, and because they don't have the quality, right, to finish. And also Chelsea is an experimental phase. Chelsea का तो यही है कि they will be losing to all the top 6 teams, ये तो expected है ही. Obviously City वाला गेम भी हमने यही बोला था, Chelsea क्या कर सकती है ज़्यादातर, it's a surprise तो draw निकाल सकती है, but Chelsea of course, I mean against the juggernauts,
आई थिंक दे आर odds भी उनको फेवर नहीं करती है, बट आई वांट टू सी लिवरपूल फेस एडवर्सिटी. मतलब वही दिसंबर में क्या होगा, लाइक इफ एवरीवन इज प्लेइंग राइट नाउ लाइक द वे दे राइट नाउ विदाउट इम्पोजिंग, क्या होगा. एंड आई वांट टू स्ट्रेस दिस, विल लिवरपूल सर्वाइव अगेंस्ट लो ब्लॉकिंग टीम्स. अभी तक तुमने Yeah. एक भी लो ब्लॉक टीम के साथ खेला नहीं है, एंड वन लो खेला ब्लॉक टीम. Wolves was a low blocking team. Wolves, नॉटिंगम was- नॉटिंगम एग्जांपल नॉटिंघम था. फॉरेस्ट वाज अ लो ब्लॉक टीम. वुल्स तो लो ब्लॉक नहीं है, वुल्स स्ट्रेटेजिकली लो ब्लॉक खेलती है. हाँ, हमारे खिलाफ वो लो ब्लॉक ही खेल रहे थे, हाँ, but बट हम जीते भी एक गोल से ही थे. एक गोल से जीते थे. एंड अगेंस्ट आल्सो इन क्रिस्टल पैलेस भी हाँ, ऑलमोस्ट क्रिस्टल पैलेस भी. हाँ, ऑलमोस्ट तुमने correct. ड्रॉ करा ही दिया था. बट वही लेट्स सी. आई मीन यू हैव टू हैव दिस एडवर्सिटी, उसके बाद ही तभी पता चलेगा. बट आई थिंक लिवरपूल वेरी स्ट्रांग. Arsenal is a good test also next week. Arsenal is also a good test in spite of the injuries. But again without Saliba, without No, but it's at Emirates, so I it's at think Emirates. I mean, of course. I uh, mean, everyone will know. I think what Liverpool are going to do, and everyone are going to do the same. I think. but advantage ये है कि Liverpool can afford to play for a draw. I think it's of Arsenal course it's can't. going to be another Chelsea versus. मैं बोलता हूँ ना, अगर another Chelsea versus Liverpool होने वाला है. Arsenal का गेम भी यही होगा. मतलब आर्सेनल विल ट्राई टू पास, लिवरपूल वेट करेगी, यही मतलब यही बकचोदी करेगा फिर, क्योंकि कोई इनिशिएटिव वाला है ही नहीं कोई बंदा. इवन आर्सेनल में या even लिवरपूल में. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अगेन अ स्नूज फेस्ट बिकॉज बोथ आर सेफ playing managers, and we'll try to take obviously we will try to dominate position at least, but It's at Emirates, you will. it's at Emirates, but both team will try to capture the moments. exactly, both team will try to capture I don't think, I think पता है पाल, moment से ज़्यादा ना, I think Liverpool is more banking on errors. They are setting traps on errors. मतलब चेल्सी को तो उन्होंने पता चल गया था कि उनको कुछ भी नहीं करना literally. They didn't even press. Bro, literally first half non-existing press. I think they looked best in the United game, और United game भी देखोगे तो there were out of 3 2 तो clear error थे, 2 गोल थे उस वाले मैच में. I mean, Manchester मतलब वही है, United वाले मतलब क्या match में. होगा when people start pressing. I think that is what is. But we don't very good complain. start We to the don't. season. I think we have to give credit to Slot and Yeah, Liverpool. no, we don't Very good. complain. We don't complain. अगर तुम्हारे पास वो strategy है and you are getting the results, go हाँ, ahead. very बहुत good अच्छा start है. to the season. Very good. जो Very good. Arteta starting में कर रहा था तो हम appreciate कर भी रहे थे. हाँ. But suddenly now जब struggle आने लग गया, then the fans are little bit turning now. जो बिल्कुल die hard मैच है. But लेकिन segue से बिल्कुल start करते हैं. आर्सेनल वर्स बोर्नमथ, बिल्कुल एक बोर्नमथ जो मैच नेक्स्ट है ऑन द रोड वाइटलिटी स्टेडियम पे था. हां, वाइटलिटी स्टेडियम, Vitality Stadium में था, and it was like Yeah. again Yeah. for the first 32 minutes it was a snooze fest. किसी को भी मतलब वो नहीं करना था. आई थिंक जो मरीनो को मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक ही लंग्स है, ना वो भाग पा रहा था, ना उसके पासेस सारे शॉर्ट पासेस थे, एंड ओनली वन गाय वाज प्लेइंग. भाई आई वांट टू से दिस स्पेशली टू दिस वन गाय, काई हैवर्ट्स. भाई तू बहुत मतलब यार तू स्पिरिट से खेलता है यार. आई मीन आई हैव टू से दैट गाय इज नेवर डाइंग एटीट्यूड है भाई उस बंदे का. मैंने देखा लोग मर रहे हैं बेचो, भाग नहीं पा रहे, देन ही इज स्प्रिंटिंग देयर. अरे भाई ये कैसा है यार ये बंदा. हमारा भी नूनेज, इसीलिए सारे फैंस लव करते हैं उसको. उसका No, but वर्क रेट I इतना would अच्छा give है कि I would give this guy ब्रो 10 रोहन just प्लीज because उसको he was doing everything नूनेस right. को हैवर्ट्स कन्वर्सेशन में मतलब थोड़ा क्यों? हैवर्ट्स इज बेटर. हैवर्ट्स इज मच बेटर देन I नूनेस, think बहुत what ज्यादा. he did during मतलब the he is game, a नहीं, मैं good, वर्क रेट की बात कर रहा हूँ. what नहीं नहीं, वर्क रेट मतलब ऑन अ फुटबॉलर लेवल ही इज अ वेरी गुड फुटबॉलर. हाँ, very डिसेंट. हाँ, हाँ, भाई इतना परफेक्ट उसने मतलब एडवर्सिटी, भाई नेवर डाइंग एटीट्यूड. आई थिंक ही इज सेटिंग एन एग्जांपल फॉर द टीम ब्रो. आई थिंक चेल्सी, आई थिंक यू नीड एन हैवर्ट्स एक्चुअली. यू काइंड ऑफ मिस एन हैवर्ट्स राइट नाउ. एक I don't- नेवर डाइंग एटीट्यूड, एक मतलब कोई भी लूज बॉल को चेस करना, मतलब इट्स शोइंग दैट भाई यू हैव टू बी एट दिस लेवल, एंड दैट इन द होल ऑफ आर्सेनल टीम सब मतलब इनका एनर्जी लेवल जीरो था स्टार्टिंग में. आई थिंक दिस इंटरनेशनल ब्रेक, आई थिंक इट्स कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स दैन फॉर द फैंस एटलीस्ट, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द लेवल ऑफ फुटबॉल बहुत गिर रहा है. मतलब ये कोई अच्छा कर ही नहीं पा रहा है, बिकॉज पीपल आर मतलब जो प्लेयर्स हैं. आई थिंक हैवर्ट्स रुक गया था, इसलिए हैवर्ट्स का 100% एनर्जी था. स्टर्लिंग तो चल वो कुछ कर नहीं सकता है. आई मीन ट्रोसार्ड, सेम प्रॉब्लम विद ट्रोसार्ड. ही प्लेड बेल्जियम 2 games 90 minutes ट्रोसार्ड खेल रहा है, और मरीनो भी खेल रहा है, मतलब सलीबा खेल रहा है, गैब्रियल खेल रहा है. आई मीन बेन वाइट वाज गुड एनफ एटलीस्ट, बट
But at the end of the game, I think what Arteta is doing, भाई we were flying. जो हमारा जो second half को जो हमारा पहला strategy था कि जो first half मतलब जो पिछली season का जो second half का जो पहला half था, we were like this. भाई चलो किक ऑफ करते ही चौदो किक ऑफ करते ही मतलब वो हमारे पास वही तो एक वो था एक ब्लिट्स की तरह हम लोग खेलते थे फर्स्ट हाफ में. मतलब भले ही गोल नहीं आता था, भले ही सेट पीस से भले ही बहुत बार गोल हमने मारा है, बट वी वर प्लेइंग ब्लिट्स फुटबॉल. मतलब कॉर्नर इतने सारे कॉर्नर फर्स्ट हाफ में आते थे, इसलिए वो चांसेस बनते थे, क्रॉसेस इतने सारे बनते थे, बहुत खतरनाक. मतलब स्टार्टिंग में भी बैंग मतलब फर्स्ट हाफ ही chaos you create in their D. हाँ एग्जैक्टली जो फर्स्ट हाफ में था वी वर लाइक प्रेसिंग टू मच. मतलब ये बहुत ब्लिट्स वाला जो आर्सेनल था वो फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा खेले थे. भले ही वी वर नॉट एबल टू स्कोर गोल्स टू मच, बट वी वर सरप्राइज, वी वर टेकिंग द हेल आउट ऑफ द अदर टीम स्टार्टिंग में. और भाई बहुत थक गए 60 मिनट्स. देन 60 मिनट्स के बाद तो वी कोस्टेड बिकॉज द अदर टीम इज ड्रेन्ड आउट एंड यू कैन इजीली कोस्ट, वी कैन फाइंड गैप्स वगैरह वगैरह. Just before you continue, Dinesh, let's break down by two parts. कि दो एक है कि मतलब जो सिम्टम्स है आर्सेनल के जो दिख रहे हैं करंटली, और दूसरी चीज है स्ट्रक्चर, कि उनका स्ट्रक्चरल मतलब इश्यूज क्या है आर्सेनल के. कि फर्स्ट है कि जो मिडफील्ड नॉट जेल जो नहीं कर रहा है विद मरीनो, जो हमने भी डिस्कस किया था. दिनेश, आई टोल्ड यू कि मरीनो इज नॉट ए मैवरिक, कि वो मैवरिक नहीं है, ही इज ए टाइडी प्लेयर, ही इज ए टाइडी डिसेंट प्लेयर. जो वो कर रहा था उसने भी नंबर, बट ही इज नॉट ए नंबर 10 जो उसके साथ हुआ था. सेकंड चीज हमने डिस्कस किया कि साका और ओडेगार्ड का अगर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, और जहां भी साका और ओडेगार्ड ब्रेक हुए तो ओडेगार्ड विल स्ट्रगल और साका विल स्ट्रगल. कि साका के पूरे गेम में जो अभी तक सीजन में चल रहा है, साका का अगर पैटर्न ऑफ प्ले, मैं नंबर्स नहीं बोल रहा, मैं पैटर्न ऑफ प्ले अगर देखोगे कि वन था कि सेट पीसेस, गुड सेट पीसेस, लेकिन सेकंड था कि वो अंदर कट करेगा और वो करने वाला क्रॉस देगा, जो उसने हावर्ड्स ने 2 हेडर लिए, फिर मार्टिनेली ने बिल्कुल पैर से 2 गोल मारे उसके बाद. तो बिल्कुल पैटर्न्स ऑफ प्ले जो आर्सेनल के बिल्कुल स्ट्रक्चरल, इज देयर इज स्ट्रक्चरल डिफेंस. और जो करंटली जो टीम्स चली गई है कि इंजर्ड के बाद, कि डोंट हैव द स्ट्रक्चर बैकअप, कि जो सेम स्टाइल ऑफ प्ले यू विल नॉट कंटिन्यू. जो स्टाइल ऑफ प्ले जो स्टार्टिंग 11 कर रहे थे, वो तुम्हारा जो एक भी तुम्हारा बैकअप आता है ना, यू विल जेल नहीं कर पाओगे. क्योंकि पार्टे, राइस और ओडेगार्ड है, आई थिंक इज द बेस्ट मिडफील्ड इन द लीग मेरे हिसाब से. कि अगर कंसीडर करोगे पार्टे इज बिल्कुल फिट On paper, yes. ऑन पेपर ऐसा कि पार्टे और मेरे हिसाब से रॉड्री में इतना डिफरेंस नहीं है टैलेंट वाइज, क्योंकि रॉड्री बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है अच्छी टीम में, और पार्टे इंजरी प्रोन रहा है, ये दिक्कत है इंजरी उसके प्रोन रहा है. आर्सेनल में इतना जेल नहीं कर पाया, इन आउट, बट टैलेंट वाइज दे आर बोथ गुड. साथ. पार्टे इज वेरी गुड. पार्टे ने बिल्कुल बेंच किया था रॉड्रिगो ने एथलेटिको मैड्रिड, वी रिमेंबर दैट. और उसमें तो जो फ्रंट थ्री जो मिडफील्ड है, बहुत अच्छा मिडफील्ड है वो. आई थिंक ऑन द पेपर की बेस्ट मिडफील्ड बोल सकते हो लीग में. पर जहां भी कोई तुम्हें ट्वीक करना पड़ता है कि मरीनो ले आओ, ओडेगार्ड चला गया, उसके बाद तुम जॉर्जिनो को ले आओगे, राइट बैक को खिला दोगे तुम, कभी पार्टे को तुमने खिलाया था. देयर इज सो मेनी वेरिएशंस. और जो लास्ट पॉइंट में बोलूंगा कि तुम्हारा जो विंस कर रहे थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहे हैं. हम हमेशा पीक देखते हैं कि पीक आ रहा है टीम का, किसी भी टीम का, तो तुम फिर स्लो स्टार्ट कर रहे हो. बट लेकिन यहाँ पे मैच में तुम हर मैच में जी जान से लड़ रहे हो, बिल्कुल हर मैच को जी जान जीतेंगे. जैसे हर मैच नहीं था. आई थिंक मेरे हिसाब से 3 गेम्स जिसमें हम लोगों ने रेड कार्ड, उसी कौन में हम सा? लोगों ने सरवाइव किया था. बाकी कोई भी गेम नहीं आई डोंट थिंक सो नहीं, जान को लगा रहे थे. लेस्टर वाला मैच उसमें क्या जी जान था, जी जान लगा रहे थे. 94th मिनट में 94 मैं but it was मैं जीतने को कंप्लेन नहीं कर, मैं जीतने को बहुत स्ट्रगल है, ओवरकम. लेस्टर वाले मैच में हम लोग 90% ऑफ द गेम वी वर कंफर्टेबल. ओके यू कुड नॉट से दैट वी वर 90% ऑफ द वे कंफर्टेबल. 2-2 चल रहा था ना 90th मिनट तक लेस्टर वाला मैच. बट वो कंफर्टेबली हम लोग खेल रहे थे. इट्स नॉट लाइक वी वर डूइंग टू मच. लेस्टर वाला तो ऐसा कुछ नहीं था. वी वर ऑलमोस्ट विनिंग, ऑलमोस्ट आराम से विनिंग कर रहे थे, बट वो लेस्टर केम बैक, दैट इज द ओनली थिंग. बट यू कुडंट से दैट वी वर नॉट बहुत एक्सर्ट कर रहे थे. और दूसरी चीज है कि क्रिएटिविटी वो पूरा ड्राई अप हो चुका है. मतलब कि जो क्रिएटिविटी है वो पूरा थार डेजर्ट बन चुका है बिल्कुल. देयर इज नो मॉइस्ट वेयर एनीवेयर. क्रिएटिविटी कम हो चुका है. दैट इज बिकॉज ऑफ प्राइमरली बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप व्हिच यू मेंशनड. आई थिंक जो साका और ओडेगार्ड का जो पार्टनरशिप है, और ओडेगार्ड का जो हैवर्ड्स का, एंड ओडेगार्ड मतलब ऐसे ही है वो, मतलब ही इज अ कोस्ट प्लेयर. मतलब वो हमेशा उसको प्रेस रेजिस्टेंट है, एंड ही सीज पासेस which almost 90% of the people in Premier League right now don't see. So मतलब वो एक X factor था वो हमारा, वो हमारे डूब चुका है. But I think without him I think जो तू बोल रहा है, I don't think जी जान. मैंने तो कोई भी मैच आर्सेनल का, लेस्टर वाला तू बता रहा है, आर्सेनल मैंने देखा है कि मेरे खुद कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मैं आराम से देख रहा था, वी वर विनिंग आराम से. बट लास्ट में दे केम बैक, उसके बाद ही हमारी फटी. सो दैट मीन्स कि जी जान लगाया ना वो तो लास्ट में ही था. बट बेसिकली
but all the other matches like City वाला match again we were adversity मतलब वो था फिर I think again a red card for against for Declan Rice वो Brighton वाला वो भी adversity था then again ये वाला match ये वाला तो हमने give up ही कर दिया there is no I think Arsenal gave up 32 minutes के बाद they gave up I think we had created two एक मरीनो को चांस तो ऑलमोस्ट चला गया साइड में एंड वो एक अपॉर्चुनिटी था उसको चूतिया मार्टिनेली मादरचोद सीधा कीपर को मार गया मतलब क्या है इसमें यार मतलब ये सलाह मेरा को दे देना मेरा भाई सलाह मेरा भर देगा यार यही मैं तो हमेशा difference बोलता है कि मार्टिनेली और मुड्रिक अब सेम लेवल पे आ चुके हैं बिल्कुल हाँ धीरे-धीरे। मेरा कितना मेरा easy थोड़ा chance था अलग भाई मेरा थोड़ा अलग टेक है आर्सेनल पे मैं बताता हूँ एक है डीप इश्यूज मतलब स्ट्रक्चरल इश्यूज जो मतलब मेरे हिसाब से होते हैं कुछ टीम्स में तो पेप और आर्टेटा कैसे मैनेजर है ना दे वांट प्लेयर्स हु आर वेरी मल्टीपर्पस हु प्ले इन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस जैसे आर्टेटा 4 सेंटर बैक खिलाता है तो ग्वार्डियोल सेंटर बैक नहीं है बट लेफ्ट सेंटर बैक है बट वो लेफ्ट बैक खेल रहा है आके अकांजी ग्वार्डियोल शॉर्ट वर्ड भी लेता है कई बार लेफ्ट विंग खेलता है कांसेलो पूरा सीजन 10 खेल गया आर्टेटा इज ऑल्सो ऑफ द सेम मोल्ड इज अ वेरी नॉन ट्रेडिशनलिस्ट तो उसको क्या है कि उस केस में क्या होता है ना कभी कभी यू गेट प्लेयर्स हु आर लाइक वेरी वेरी लाइक जेम्स जैसे कि टिम्बर है टिम्बर लेफ्ट बैक भी अच्छा खेलता है राइट बैक भी अच्छा खेलता है और वो एजेक्स में डीएम भी खेलता था और वो सेंटर बैक भी खेल सकता है कैलापूरी भी अभी तक वैसा ही लग रहा है कि इज गुड बट द रिस्क इज कि इफ यू आर हैविंग अ फोर्स्ड चेंज जिसके वजह से तुम तो ऑलरेडी मिक्स एंड मैच कर ही रहे थे और अब तुमको और ज्यादा करना या पड़ेगा ना देन यू गेट एक्सपोज तो अभी आर्सेनल के साथ क्या हो रहा है ना अभी इट्स अ फ्रीक शो इसका कोई टैक्टिक्स का कोई जवाब ही नहीं अगर तुमको 4 रेड कार्ड मिला है 4 मैच में और तुम्हारा हर एक प्लेयर या तो 3 गेम मिस करेगा या एक मिस करेगा और उसको ऊपर तुम्हारी इंजरी भी है तुमने प्लेयर भी साइन नहीं किया है एंड यू आर ऑलरेडी हैविंग प्लेयर्स की जो वर्सेटाइल है देन यू आर रिलाइंग ऑन देयर वर्सेटिलिटी की अरे ये गया तो इसको यहाँ खिला या दूंगा तो एग्जैक्टली कोई हाँ चेंज नहीं आएगा वही और एंड दैट इज व्हाट हैज स्टार्टेड बाइटिंग आर्सेनल बैक इट हैज नॉट बीटन सिटी एवर सिटी बिना स्ट्राइकर के भी लीग because जीत the जाती है quality of players are very high there actually but I think they have missed like Arsenal what I, like we were discussing earlier उन्होंने कुछ की पोजीशंस में साइनिंग्स भी नहीं करे जैसे कि अब they are completely reliant on Havertz to excel yeah वो जीसस को कब पिछले मैच में कब लाया आर्टेटा 80 या हाँ 70 80 में मिनट लाया में था लाया यार तो तो the thing is he has given up on Jesus now he has brought Quivior वो भी मेरे को डिसीजन समझ में नहीं आया मेरे को लगा कि किसी को भी सेंटर पे खिलाओ बेन वाइट को खिलाओ बट देन बेन वाइट को राइट बैक से हटाओगे कैसे क्योंकि अब वो भी लंबा गया टोमियासो भी अब लंबा इंजर्ड हुआ है लाइक वी डिस्कस्ड उसका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं ओडेगार्ड का जो हितेश बोल रहा था मरीनो इज नॉट अ 10 he has never been a 10 yeah so now all of this mixed together it is coming back to bite like a lot to Arteta क्योंकि पेप के पास एक्सपीरियंस भी है पैसा भी है प्लेयर्स भी ज्यादा है उनके इंजरीज भी कम होते हैं मतलब आर्सेनल से तो आई थिंक दैट इज व्हाट आर्सेनल इज फेसिंग वैसे जो क्लॉप का था ना वो एकदम ट्रेडिशनलिस्ट था उसके पास जितना प्लेयर होता था लाइक बाय लाइक थोड़ा मोड़ा चेंज करेगा कि कर्टिस जोन्स 8 भी yeah खेल लेगा 10 भी खेल लेगा उतना लेवल पे चलता है जो गोमेस टाइप का एक प्लेयर होगा जो सेंटर बैक लेफ्ट बैक राइट बैक सब खेल लेगा बट वो ज्यादा चेंज नहीं करता जब हमको बहुत सारी इंजरी हुई थी सेंटर बैक की उसने रॉबर्टसन को कभी सेंटर बैक नहीं खिलाया जबकि रॉबर्टसन सेंटर बैक खेला है स्कॉटलैंड के लिए बट वो लेफ्ट बैक ही खिलाते रह गया भले उसको हेंडरसन को पीछे भेजना पड़ा सो इट्स वेरी डिफरेंट Yeah. फिलोसफी एंड आई थिंक आर्टेटास फिलोसफी इज लिटिल बिट स्ट्रगलिंग और ये जो फ्रीक शो है इसका तो कोई रिटर्न ये नहीं होता है ना कि आपको 4 मैच में 4 रेड कार्ड मिल रहे हैं इवन आर्टेटा पांच कैन नॉट मैच में प्लान 3 फॉर रेड दैट कार्ड तीन मतलब तीन हाँ मतलब आर्टेटा इसके लिए हाँ प्लान कर भी नहीं सकता कोई भी कोच कर प्लान भी नहीं नहीं कर सकता सकता या आई थिंक हाँ डिसिप्लिनरी हाँ इश्यूज तो है बट जो उसने बोर्नमथ में जो लैक ऑफ जो स्पाइन दिखाया ना हाँ वो उसको क्रिटिसाइज करना जरूरी है ब्रो माय भाई ओनली वो बच्चा क्वेश्चन है यार और उसको तो 89 में 83rd मिनट में ला रहा चूतिया है क्या ब्रो भोसड़ी के ब्रो दैट्स व्हाट मैं बोल रहा हूँ कि आई रिमेम्बर कि 32 मिनट पे जब रेड कार्ड मिल गया था उसको जो सलीबा को आई थिंक कि उसी टाइम मिकेल ने बोल दिया कि भाई आई हैंड्स अप एंड आई शेक हैंड विद यू कि तुम 0-0 पे बिल्कुल हैंड शेक ऑफ हाँ कर दो मैं 0-0 पे अभी एक्सेप्ट कर लूंगा बट वो चीज की आई थिंक कि तुम्हें जाना चाहिए गेम की बिल्कुल अटैक के लिए थोड़ा बहुत एटलीस्ट एक चांस आया था मार्टिन के पास ही शुड हैव स्कोर्ड आई थिंक इजी चांस बिल्कुल केपा ने हक दिया अच्छे से केपा से केपा का एक्सपेक्ट तो भी पर करेगा गेम एक मिस्टेक तो हाँ होता ही है उसको तो हाँ वो एक्सपेक्ट वही दैट्स व्हाट कि नहीं केपा बट से राया एक्सपेक्ट भी राया का भी करोगे मिस्टेक हो रहा है उसको भी थोड़ा सा बोलना भाई चाहिए वो वाला शेकी मैच मिस्टेक हुआ वो भी स्पेन में खेल के आया ना वही प्रॉब्लम हो रहा है यार ये इंटरनेशनल ब्रेक में जो खेल के आते हैं इनको ये प्लेयर्स आई थिंक आई डोंट थिंक दे आर लाइक गुड एनफ टू प्ले इंटरनेशनल एंड देन ये कम यहाँ पे आके वापस इनको करना I think this is the first season which I think people will start seeing people नहीं बट struggling. इफ यू कंपेयर विद सिटी एक जो टाइटल के लिए जाल अच्छा रहे दो गुंडागॉन नहीं क्या नहीं कर रहा था पूरा हग्गू था नहीं नहीं गुंडागॉन नहीं तो नहीं मैं ये गेम कंपेयर नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ रेड के लिए जब सिटी को रेड मिलता है बहुत रेयर केस है
पर जब भी मिलता है लिवरपूल को मिलता है रेड कार्ड। तो मैं बोल रहा हूँ कि जिसके जो टाइटल के लिए जा रहे हैं, मैं बाकी टीम से कंपेयर नहीं करता, जो टाइटल के लिए 3 टीम जा रहे हैं, लिवरपूल जा रहा है और क्या बोलते हैं सिटी जा रहा है, तो सिटी भी स्टिल दे स्टाइल दे प्ले कि वो दे ट्राई करते हैं, कीप द बॉल पास करने का ट्राई करेंगे, बट लेकिन मिकेल वो चीज नहीं करता, वो बिल्कुल फिर अटैक करने का ट्राई भी नहीं करता उस टाइम, बिल्कुल वो बैक ऑफ हो जाता है, बिल्कुल 4-4-1 जो भी है, या फिर 4-5 क्योंकि उसका स्ट्रेंथ 5-4 डिफेंस है ना हितेश, उसने ये ब्रो। जो भी बनाया है वो डिफेंस पे ही एक बनाया है, पॉइंट उसका वो फाउंडेशन पूरा। लिवरपूल ने जो न्यूकासल के अगेंस्ट 10 मैन में किया था, मेरे को हाँ याद है वो वंडर स्ट्राइक नूनेस बने, न्यूनेस के वंडर स्ट्राइक आए, पर वंडर उसको स्ट्राइक वो ये होता है, वो एक दो चांस चांसेस होता है, वो एक दो चांस आर्सेनल ने भी बनाया तुम्हें है। लेने पड़ते हैं, और तुम्हारा नहीं, जो बट वो फ्रंट, फिलोसॉफिकली क्लॉप का था कि 9 मैन और पे भी हम जीत जाते बट टॉटनहम दूसरी से। चीज की जो इंजर्ड के बाद जो तुम्हारे जो विंगर्स हो रहे हैं कि मार्टिनेली एब्सोल्युटली शिट, ये क्या बोलते हैं स्टर्लिंग एब्सोल्युटली शिट, बिल्कुल खराब है, भी नो थे कि दोनों भाग ही की नहीं पा प्लेयर्स रहा नहीं है। यार, वो मेरे को अजीब ट्रोसार्ड लग रहा है। ट्रोसार्ड कभी कभी अच्छा करता है, कभी मतलब मोस्टली हॉट बेंच है, से कभी अच्छा ऑफ है, करता है, बेंच बेंच से। ऑफ है, लेकिन कभी भी स्टार्ट करता है, असिस्ट दे देता है, नंबर्स जनरेट कर देता है, पर नॉट इम्पैक्टिंग जो ऑडेगार्ड करता है। तो फ्रंट लाइन है, तुम बस एक बेचारे तुम हैवर्ट्स और साका पे तुम पूरा बिल्कुल होप दे दिए तुमने, दो लोगों पे, बस दो लोगों पे, जिसमें भी तुम हैवर्ट्स इतना अच्छा नहीं है, मतलब तुम हाँ, बिल्कुल, हैवर्ट्स इज नॉट हाँ विनर। हैवर्ट्स इज नॉट ए प्रीमियर लीग टाइटल स्ट्राइकर, विनर स्ट्राइकर मेरे हिसाब से, क्योंकि यू नीड सपोर्ट। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें साका के तुम्हारे गोल्स ट्राई करके हैं अभी, असिस्ट आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अंदर के लिए जाता है, वो हेडर के लिए ट्राई करता है करंटली। तो आई थिंक कि मिकेल मरीनो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मिकेल मरीनो के मेरे हिसाब से ओनली थिंग कि मिकेल मरीनो के पास अभी उसने पूरा इवॉल्व कर दिया ब्रो। 2 सीजन पहले उसने ब्लिट्स करना जब स्टार्ट किया था, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, वो 19 मैचेस में 50 गेम्स एंड यू वर स्कोरिंग 3-4 गोल्स। फिर तुमने इवॉल्व किया सेकंड में कि वी विल कीप द बॉल लास्ट सीजन में, पर ये सीजन में तुमने इवॉल्व किया कि यू गिव अप द बॉल, कि मेरे को बॉल भी नहीं चाहिए, अब मैं पूरा डिफेंस रहूंगा। तो पूरा जो मिकेल का इवोल्यूशन हुआ कि स्ट्राइक मतलब बिल्कुल एक्साइटिंग, फिर कंट्रोल, और फिर लास्ट में कि गिव अप द पोजीशन। तो आई थिंक कि विल द टाइटल चार्ज सस्टेनेबल विद नहीं, दिस टू स्ट्रेटजी? बी फेयर टू आर्सेनल, उनकी उनकी थोड़ा किस्मत भी खराब रही है, जिस चीज को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मेरे को हमेशा लगता है कि इंटरनेशनल ब्रेक से आने के बाद एवरीवन प्लेज स्क्रैची फुटबॉल। हम भी नॉटिंघम से तभी हारे थे जब इंटरनेशनल ब्रेक से आए थे। अभी भी सिटी कल गंदा खेली, आर्सेनल गंदा खेल रही थी, इवन विथ 11 वर्सेस 11। सो द मोमेंट आर्सेनल कुड थिंक कि चलो एक हाफ गंदा हो गया, नाउ वी आर जेलिंग, अब थोड़ा सेकंड हाफ में जीतते हैं उनको, उस समय ही सलीबा ने रेड कार्ड ले लिया। देन आई लाइक आई टोल्ड यू कि आर्टेटा गोज फॉर वर्सेटाइल प्लेयर। आर्सेनल का प्रॉब्लम क्या है कि उनके डिफेंस के जितने प्लेयर उन्होंने साइन किए हैं सब वर्सेटाइल है, वो सारे अच्छे निकल गए हैं। कैलाफुरी भी अच्छा है, टिम्बर भी अच्छा है, और मिडफील्ड के जो उन्होंने साइन किए उनमें से कोई अच्छा नहीं निकला है। हम मोरिनियो 10 नहीं खेल सकता, जॉर्जिनियो जब खेलता है तो उसको अकेला 6 खिलाओगे तो वो नहीं खेल पाएगा। फॉरवर्ड में भी वैसा कोई प्लेयर नहीं है, जो जैसे कि हावर्ड्स आया है तो वो अकेला नहीं खेल सकता। तो बहुत ये इसके लिए प्लान नहीं कर ब्रो सकते आइडियली। मिडफील्ड में राइस, पार्टे, और अगर तुम ये मरीनो खिलाते हो जो कल हमने सीजन देखा था वो वाला गेम, वो तो तुम्हें उसमें जीरो क्रिएटिविटी है, जो 5% है वो पार्टी की है और किसी में है ही नहीं। मैंने देखा कि राइस को बॉल मिली, राइस ने बिल्कुल रन कर दिया 50 यार्ड्स, उसने बॉल को कैरी फॉरवर्ड किया, पर आगे जाके उसके पास समझ ही नहीं आ गया मुझे क्या साइड करना पास। है, या तो उसने बैक दे दिया या साइड में दे दिया वहीं पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि दे वुड हैव रिलाइड कि मोरिनियो मेरिनियो विल बी वर्सेटाइल इनफ कि नहीं अगर पर गलती से कभी पर नहीं खेला दैट्स वो। वाई कि जब सीजन स्टार्ट कर रहे थे हम, तो बोर्ड पे आर्सेनल फैंस को क्वेश्चन करना था कि हमारा जो स्ट्रगल है कि मरीनो के साथ और ये स्टर्लिंग के साथ, ये बिल्कुल दे आर नॉट दैट गेम की, हाँ, वो मतलब तो हमने डिस्कस करा ही था। तुम्हें हाँ, एलिवेशन नहीं करेंगे। तो तुम्हें उस टाइम जब कंप्लेन कर रहे थे 2 सीजन 3 महीने पहले, कि उस टाइम यूवर की चलो ठीक है स्टर्लिंग आ गया वैसे नॉर्मल करके, कि अब लास्ट दिन आ गया तो क्या कर सकते हैं, मरीनो बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है, बट क्रिएटिविटी है ही नहीं। तो उस टाइम की मरीनो को कोई नहीं देख रहा था, सब लोग बोल रहे थे रियल सोसिएडाड में वो क्या कर रहा था, उसने भी एक हेडर मारा था यूरोज वाले गेम में और सब हाइप अप कर गए थे उस टाइम। बट स्टिल देयर आर लॉट्स टू लर्न, स्टिल लॉट्स टू लर्न फ्रॉम द आई गेम, थिंक हाँ, फ्रॉम द उनका गेम। प्रॉब्लम क्या मेरा है भी कि अच्छी, बोथ मिडफील्ड आई एंड वुड से अटैक आर नॉट मेरा वर्सेटाइल। भी लिवरपूल वाला केस ही। आई थिंक हम लोग अगर सिटी के या लिवरपूल के पास अगर दिसंबर तक हम लोग कंटेंशन में रहे हैं, अभी वी आर इन द टाइटल चांस, देन आई थिंक वी हैव टू गो टू साइन प्लेयर्स। आई थिंक वी हैव टू साइन विंगर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जो साका रिप्लेसमेंट एंड मार्टिनेली रिप्लेसमेंट, एंड देन एक स्ट्राइकर को तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए। आई थिंक वी नीड टू जो मतलब आई थिंक वी हैव टू बी इन द टाइटल कंटेंशन। आई थिंक उतना तो मेरे को लगता है कि वी हैव द कैपेबिलिटी, बिकॉज प्रीमियर लीग में उतना क्वालिटी मेरे को दिखता ही नहीं है ये छोटे टीम्स में, स्पेशली जो छोटे टीम्स में। आर्सेनल का वीक पॉइंट इज कि नो 3 बट में से ना एक ही रिप्लेसमेंट चीज थे, अच्छी हो रही है, उनकी डिफेंस।
दैट्स द प्रॉब्लम। आपको अटैक और मिडफील्ड दोनों के दोनों वर्सेटाइल नहीं है ना। जैसे हमारा, हमको पता है कि मिडफील्ड वीक एरिया है, वर्सेटाइलिटी प्रॉब्लम नहीं है, बट वीक है। बट हमारा फॉरवर्ड में मतलब एक दूसरे से पोजीशन स्वैप करके खेल लेते हैं, हमारा डिफेंस अच्छा है, उतना ड्रॉप ऑफ नहीं होता है। आर्सेनल का क्या है ना कि जैसे अगर स्ट्राइकर अच्छा होता, दो तो एक 9 खेल सकता था और एक 10 में आके बट पीछे खेल सकता एटलीस्ट था ओडेगार्ड के मैकेलिस्टर बदले। है ब्रो, एटलीस्ट यू हाँ हैव मैकेलिस्टर तो पूरा अच्छा, ही इज हाँ, अ प्रॉपर मैगनेस तो 10। बहुत बड़ा, हाँ मैकेलिस्टर एक मैगनेस प्रॉपर प्रॉपर 10 है, वो 10 भी खेल सकता है, वो 8 भी खेल सकता हाँ, है, वो इज अ 6 प्ले भी खेल मेकर है। सकता है। हाँ, मैकेलिस्टर के पास जो, लेकिन जो कंपैरेटिवली तुम आर्सेनल का मिडफील्ड देखोगे तो देयर इज एब्सोल्यूट जीरो क्रिएटिविटी देयर। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि 10 खिलाने के दो तरीके हैं। या तो तुम्हारा कोई मिडफील्डर जो पीछे खेलता है वो आगे जाए, या फिर जो स्ट्राइकर आगे खेलता है वो पीछे है। आर्सेनल के पास दोनों ऑप्शन नहीं है अभी, समझ रहा है? जैसे हमारे पास एटलीस्ट एक ऑप्शन है, सिटी के पास भी एक होता है, आर्सेनल के पास दोनों नहीं है। उनके पास ऐसा कोई स्ट्राइकर नहीं है कि तुम बोलो कि चलो हैवर्ड्स फॉल्स नाइन खेलेगा, तू पीछे 10 में आके खेल ले। तो दे डिडंट साइन अ स्ट्राइकर, दे डिडंट साइन अ विंगर हु कैन डू दैट जॉब। दैट्स द प्रॉब्लम। जस्ट टॉटनहम को देखो, तुम कितना भी गंदा बोलो, कुलुसेस्की जब से 10 खेल रहा है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, मेरे ब्रो मेरे हिसाब से। ब्रो आई रेट एंज, इसलिए मैं उसको हाँ एंज रेट करता हूँ कि उसने, उसको क्या बोलते हैं नंबर 10 क्या है, वो मेडिसन, मेडिसन को हाँ उसने फक ऑफ बोल दिया कि भाई तू गांड हाँ मारा, तू हग रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा, हाँ। तू मतलब क्रॉस अंदर कट करता है, तू क्रॉस दे रहा है, और उसमें कोई वहां पे कोई हैरी केन नहीं है जो हेडर मार देगा बीच में, हम्म, बिल्कुल सोलंकी कर सकता है बट वो ड्रॉप कर रहा है वो भी। तो उसने बोल दिया कि जो कि यू फक ऑफ मेडिसन, उसने हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर दिया था लास्ट मैच में, और उसके बाद वो उसने कुलुसेस को नंबर 10 खिलाया, एंड ही इज स्प्रेडिंग मैजिक currently। हाँ, बहुत अच्छा खेल रहा है वो। तो वही बोल रहा हूँ कि आर्सेनल के पास वो ऑप्शन है नहीं बेंच पे भी। दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे ट्रेडिशनली तुम सोचोगे कि शायद हावर्ड्स 10 खेले, जीसस 9 खेल ले, बट वो ट्राई कर चुका है, वो बहुत गंदा दिखता है। वो हमने देखा है, हावर्ड जब फॉल्स 9 के बदले पीछे खेलता है ना, तो वो एकदम बहुत ज्यादा खराब खेलता है। सो आर्सेनल हैव नहीं बट इश्यूज एंड बैड लक। हैवर्ट्स का बस मैं इतना बोलूंगा कि मतलब ही विल नो डू एनीथिंग एक्स फैक्टर, वैसा नहीं करेगा, हाँ, जब वो ड्रॉप करेगा वो नहीं करेगा, पर ही विल लिंक अप, वो वन ही विल टच होल्ड वो होल्ड वन बॉल। टच करके इसको दे देगा, ओडेगार्ड को दे देगा, या साका को दे देगा एटलीस्ट, या फिर उसको दे देगा, क्या बोलते हैं ड्रॉप रिसाइकिल करके के लिए राइट, बहुत अच्छा बंदा है वो। एग्जैक्टली, और या फिर उसको हेडर चांसेस या फिर मूवमेंट से मिल जाते हैं, वो फिनिश लाइक 3 आउट ऑफ 10 3 फिनिश आउट ऑफ वो 10 कर वो फिनिश कर सकता है वो, बट यू कांट रिलाई, या and you नहीं, can't rely on आर्सेनल साका। की साका पे ब्रो, वीकनेसेस साका को विजिबल है। गधा मजदूर बना रखा है ब्रो, उसको हाँ, तो पूरा गधा मजदूर बना रखा है ब्रो। अब तो मैं साका को मतलब बिल्कुल ब्लेम भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। कितना खेलेगा ब्रो, अब वो नंबर्स नहीं तो मतलब यू वो कांट अच्छा, हैव 3 और 4 वो फॉरवर्ड्स इन बैड फॉर्म ना। मार्टिनेली और ये अपना यूसुफ खेलता नहीं है, स्टर्लिंग खेल ही नहीं पा रहा, और ये अपना ओडेगा, ये क्या नाम है इसका, ट्रोसार्ड भी बेंच से ही अच्छा खेलता है। तो ये 4 पीपल हु आर स्टार्टिंग आर प्लेइंग बैड। तो तुम अकेला रिलाई कर रहे हो साका पे, तो गैब्रियल ने गोल मार मार के कॉर्नर से बचाया हुआ है। हाँ, सो दैट इज अनसस्टेनेबल इज व्हाट आई मीन। I mean, क्योंकि yeah, I अब agree to it. या I mean, the points which you've said, I think agree to it. The problem is we lack creativity right now. I think Marino का भी पहला ही game है. I think या even इंजरी से भी he's आया है, injury से भी आया, and also he played the international break as well. बट ही इज नॉट अ 10। दैट पॉइंट He's इज not स्टिल a 10, स्टैंडिंग। but I think हम लोगों की क्या है ना, we basically rely on the front three, right? फ्रंट थ्री कुछ ना कुछ कर देगी, या प्रेस करके बिकॉज वी आर गुड प्रेसिंग टीम, और हम लोग प्रेस करके कुछ गलती निकाल रहे हैं एंड देन वी स्कोर। आई थिंक दैट इज व्हाट आर्टेटा इज बैंकिंग ऑन राइट नाउ। एंड ऑल्सो अभी तक तो सीजन में आई थिंक हमारे जो मैवरिक प्लेयर्स के साथ हमने अभी तक खेला भी नहीं है। सो आई थिंक मे बी इफ ओडेगार्ड कम्स बैक एंड साका कम्स फिट, आई थिंक ये मेरे को जो हार्वर्ड्स ने किया था वो साका को हर बार करना चाहिए, इंग्लैंड को फक ऑफ बोलना चाहिए। अभी टॉमस टुकेल को चल ठीक है आ गया है, बट फिर भी आई थिंक साका शुड से फक ऑफ, एंड ऐसा बोलना चाहिए कि कभी कभी यार इतना देर तो क्योंकि वो हर मैच स्टार्ट करता है यार, इंग्लैंड में जाएगा स्टार्ट नो बट करेगा। भाई नाउ तो उसके लिए भी नाउ द प्रेस्टीज है ना। क्वेश्चंस आर नाउ द क्वेश्चंस आर मूव्ड ऑन फ्रॉम प्लेयर्स, मेरे हिसाब से द क्वेश्चंस या हैव मूव्ड ऑन आई टू एग्री। मैनेजर। अब मैनेजर पे क्वेश्चन है ब्रो सारे के सारे, बिल्कुल, कि उसने ही प्लेइंग स्टाइल अडेप्ट किया कि मैं बिल्कुल साइनिंग्स डिफेंस, भी। मैं बिल्कुल डिफेंस खेलूंगा, मैं मरीनो लाऊंगा, मैं मार्टिनेली को पेस दूंगा, उसमें मैं साका को कंट्रोल दूंगा जो अंदर कट करके क्या बोलते क्रॉस दूंगा, या फिर वो ओडेगार्ड इवन के रेया साथ, डिसीजन, रेया वाला डिसीजन भी। हाँ हाँ ओडेगार्ड के साथ वो तो अच्छा डिसीजन था, वो रामसेल रैमसडेल अच्छा कहीं नहीं है, का नहीं है यार, बट रैमसडेल हाँ, बोला कि मैं राम्सडेल एडिक्ट तो कर नहीं रहा ब्रो था, हूँ। बट बट द ओनली फनी थिंग आई फाइंड आउट अबाउट आर्सेनल फैंस कि तुम पहले बैच पूरा अच्छा प्लेयर पूरा हाइप करने लग जाते हो, और उसके बाद आर्सेनल आर्सेनल टीम
और मिकेल वो क्या बोलते हैं, जब वो रिप्लेस कर देता है सेम टीम को, तब तुम बोलते हाँ वो तो चूतिया है। पहले रामचल बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, जब उसने रिप्लेस कर दिया ना हाँ वो चूतिया है। पहले वो बेन वाइट बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, टिम्बर को उसने रिप्लेस किया, थोड़ा धीरे स्टार्ट किया, बोला कि हाँ वो बेन वाइट थोड़ा शेकी लग रहा है, थोड़ा शेकी लग रहा क्या है, अच्छा बात, नहीं लग बेन रहा। वाइट बहुत अंडररेटेड है, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं देते प्रॉपर, नहीं, मेरे पर को मैं बोल लगता रहा है हूँ वो कि बहुत अच्छा खेला है राइट बैक। नहीं, मेरे को पिछले ऐसा सीजन में लगता है बहुत लोग अच्छा खेला था, बट लोग ट्रेंट और जेम्स का डिबेट करते हैं। आई थिंक बेन वाइट ने 1-2 सीजन लगातार अच्छा खेला राइट बैक, मतलब इतना मजाक का बात नहीं है सेंटर नो बैक बट से राइट बैक खेलना। ही इज प्लेइंग गुड इन द सिस्टम जो उसने क्रिएट किया, हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली। बट फेयर। पर हाँ ही इज प्लेइंग एज अ कॉग इन द सिस्टम बिल्कुल अच्छे से। yeah. नहीं, बट वो पूरा सीजन बहुत कंसिस्टेंट खेला है, उसने असिस्ट वगैरह भी दिए हैं, मतलब आई एम सेइंग कि इन द स्कीम ऑफ कॉन्वर्सेशन ही इज नेवर देयर, व्हिच आई फील इज अ लिटिल बिट लाइक उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि अच्छा खेलता है वो काफी राइट बैक में। He was not So signed for a right back, right? He was signed for a center back. So yeah, by the way, like maybe मैं तो नहीं आ पाऊंगा, but Dinesh, like, do you have any preview for the I game? don't Yeah. The main exciting news is कि Saliba is missing. yeah, Salah is missing. Saliba and Odegaard also. Odegaard is also ओडेगार्ड missing. Odegaard भी तो नहीं है, Odegaard तो दिसंबर तक आउट है, वो पता है वो। साका का क्या है? शेकी शेकी है कि खेलेगा? वो आ सकता है मे बी, पता नहीं, या वो इसका भी पता Yeah, नहीं। it's a 50-50. हमारा भी Jota is 50-50. I like Jota playing against Arsenal. हमेशा कुछ हाँ, तो असल बुली निकलता करता है। है ना, बट या हाँ, तो बट दिनेश, हाउ डू यू सी कि मेरे हिसाब से जो मैं देखने वाला हूँ कि सेम स्नूज फेस्ट होने वाला है ये स्नूज मैच फेस्ट में ही भी है, उसमें कोई वो नहीं अगेन। है, हाँ, कोई वो कि नहीं है इसके पास। दोनों को बॉस नहीं चाहिए, आर्सेनल को भी बॉल देंगे कि तुम रखो, लिवरपूल बोलेंगे हाँ, कि मैं नहीं डेडलॉक नहीं नहीं रहूंगा। नहीं, आर्सेनल बॉल रखेगी, लिवरपूल बोलेगी आई अबे बात, एंफील्ड एमिरेट्स में, पे है। एंफील्ड में चेल्सी ने बॉल रखा, क्या बोल रहा है। नॉट दिस सीजन ब्रो, दिस सीजन यू हैव नॉट केप्ट, किस में तुमने एक भी मैच में बिल्कुल 50% नहीं, अच्छे से दिनेश बोल रहा है किया? कि लिवरपूल ही बॉल लिवरपूल ही दे बॉल देगी देती है। ना। हाँ, ये बोल रहा है। या सो I हाउ डू think it यू। will be. I don't think. I think Slot will switch tactic switch कर देगा. I think we will play possession based because he senses a weakness. He will try to go very like aggressive in the beginning. But like I said, Liverpool can afford a draw. एक तो आर्सेनल के अवे है, प्लस हमने पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किए, आर्सेनल ने किए हैं, आर्सेनल कैन नॉट। सो इफ दैट गेम हैपेंस कि आर्सेनल आर पुशिंग टू मच एंड देन लिवरपूल फाइंड ओपनिंग्स, तब शायद वो इसी टैक्टिक्स से चला जाए। बट इफ आर्सेनल प्ले नेचुरली एज दे प्ले, स्लॉट कैन स्विच टैक्टिक्स कि वो एग्रेसिवली खेल सकते हैं बिकॉज वी हैव बेटर प्लेयर्स ऑन पेपर। तुम्हारे जो अगर साका भी बाहर हो जाता है, देन दे कैन स्मेल ब्लड। बट द थिंग इज कि आर्सेनल का डिफेंस काफी अच्छा है। सो इट विल बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारा ये भी इंटरेस्टिंग होगी, मैकलिस्टर आ रहा है तो 10 में कौन खेल रहा है, जोन्स को खिलाते हैं या सोबोस्लाई को खिलाते हैं। दैट विल आल्सो बी लाइक इंटरेस्टिंग। आई वुड स्टिल प्ले सोबोस्लाई बिकॉज आर्सेनल आर वेरी फिजिकल एंड लाइक उनका भी रनिंग काफी स्टैट्स काफी अच्छा है। तो सोबोस्लाई इज लाइक वो बॉल तो छीन ही लेता है मस्त, कल भी इसने बहुत छीना है पाल्मर वगैरह से, तो आई वुड स्टिल प्ले हिम। बट आई थिंक इट्स स्टिल एन इंटरेस्टिंग गेम। मेरे को नहीं लगता कि स्नूज फेस्ट होगा। आई थिंक इट विल बी मोर लाइक दैट गेम जब एनफील्ड आई थी आर्सेनल और वो गेम बहुत अच्छा हुआ था, ओडेगार्ड का हैंडबॉल नहीं दिया था बट वो ड्रॉ हो गया था मैच। तो उस टाइप का मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इट विल नॉट बी लाइक चेल्सी गेम, इंटरनेशनल ब्रेक से भी थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो दे वुड हैव जेल्ड। एक गेम और है ना, मिडवीक भी है एक, तो दे वुड हैव जेल्ड मोर। I actually see an interesting game because Arsenal need a win, so they will do something different than they play normally. ओके, सो व्हाट विल बी योर प्रेडिक्शन दोनों माय वो। प्रेडिक्शन इज आर्सेनल विनिंग 2-1। I think Liverpool wins 2-1. 1-2 अपने हमारे घर में, हाँ तो क्या हो गया? हमारे घर में तो तुम टफ है, पिछली I'd सीजन go में for नहीं। हाँ, टफ 1-1. तो है बट जस्ट बिकॉज ऑफ द टीम। ड्रॉ तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, I जीत think तो I'd go for 1-1 or 0-0. 0-0, 0-0 तो नहीं होगा। 0-0 तो नहीं होगा ब्रो, 0-0 नहीं होगा। 0-0 Let's तो see. दोनों कोचेस आई थिंक 0-0 अफोर्ड नहीं They कर at least go for goals. The only time they sit back is after they have scored. सकते। 0-0 पे तो 0-0 नहीं तो sit back मुश्किल है। करते हैं। हाँ, Yeah. So, but just Rohan, just before you go, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वुल्व्स के 95th मिनट में अगेंस्ट जो बर्नार्डो सिल्वा के जो गोल हुआ था, मतलब हाँ, रूबन डियाज का गोल था, बट सिल्वा ने जो इंटरफेयर कर रहा था, नहीं वाज इट रूबन डियास नहीं, ऑफसाइड? जॉन स्टोन्स का गोल था। जॉनस्टोन, बट John Stones, yes. सिल्वा ने जो किया, वाज इट ऑफसाइड? डिस्कस। I 100% think it ऑफसाइड, was. I think it was an 100% offside. ऑफसाइड। He was interfering with play क्योंकि तुम कॉन्ट्रास्ट देखो ना, एक कल जोन्स ने गोल किया है, उसमें नूनेज ने क्या आगे जो बहुत मतलब बारीकी से फुटबॉल देखेगा ना, वो उसका बात ही नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूँ नूनेज ने क्या किया पता है, नूनेज वाज ऑफसाइड वेरी क्लियर, बट ही वाज नॉट इंटरफेयरिंग विद द गोलकीपर, ही वाज इंटरफेयरिंग विद द वो रीस जेम्स और उसके एक और डिफेंडर खड़ा था,
कि वो ऐसा मोमेंट प्रिटेंड कर रहा था कि मैं आगे जाऊंगा, जबकि वो बिल्कुल नहीं जाता, वो 1 किलोमीटर ऑफसाइड था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्मार्ट मूवमेंट, जेम्स एंड अदर्स वेर अ लिटिल बिट कॉट ऑफ, जोन्स निकल गया, बट ही वाज नॉट इंटरफेयरिंग विद द गोलकीपर, बहुत दूर था। इट वाज स्मार्ट बट इट वाज नॉट इंटरफेयरिंग विद द गोलकीपर। बट उसका वैसा नहीं था यार, बर्नार्डो सिल्वा एकदम लाइन ऑफ साइट में था उसके, लाइन ऑफ हिज साइट में मूवमेंट वाज, लाइन ऑफ साइट साइट में में तो नहीं था, नहीं बट था, वो पीछे पूरा धक्का ले रहा था। साइट में तो उसका नहीं था। गोलकीपर से मतलब हाँ, गोलकीपिंग में गोलकीपर से हिंड्रेंस था ना आगे वो। था, बॉल यहाँ से आई है, बट नहीं, गोलकीपर के आगे था वो। मेरा पर्सपेक्टिव अगर मैं वो डिसीजन के लिए देखूं कि जब वो क्रॉस आया, जब किसी ने देखा नहीं है अभी, मतलब ऑफसाइड हुआ नहीं है, ही इज नॉट करंटली ऑफसाइड राइट नाउ। जब क्रॉस हम्म, आया है वो ही इज ऑनसाइड, जब क्रॉस आया है नहीं 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 स्टार्ट, नहीं नहीं नहीं, नहीं जब क्रॉस ठीक- नहीं क्रॉस है, स्टार्ट हुआ है, नहीं। जब जब गोल क्रॉस हुआ स्टार्ट तब हुआ भी है, वो ऑफसाइड था ब्रो। नो नो, मैं बोल रहा हूँ जब हाँ, क्रॉस स्टार्ट हुआ है, हाँ, जब क्रॉस तब जब ऑन जब साइड था। जब क्रॉस स्टार्ट हुआ है तब वो ऑन साइड था। हाँ, उस टाइम वो रेफ, वो जो क्या बोलते हैं, जो तुम लोग करते हो, जो आर्सेनल करता है, बेन वाइट करता है, जो और जो करता है कि हाँ, जो ये बात सही बोल रहा नहीं, है मैं बोल हितेश रहा कि हूँ कि बेन वाइट भी यही जो करता है। गोलकीपर के साथ जो रफल अप करता है, जो बेन वाइट करता है, बहुत करते हैं, आर्सेनल बहुत टीम करते नहीं हैं, बड़ा वो बहुत ऑफ टीम में नहीं करते रहता हैं। उस टाइम बेन वाइट। नो नो, एक्चुअली आई टेल यू ब्रो, नहीं नहीं एक नहीं, सेकंड, बेन वाइट नहीं सेम नहीं, चीज ही पूरा करता उस टाइम है। पूरा हमारा इसलिए लाइन नो अप नो नो, हम लोग एक से लगाते हैं, वही नहीं तो नहीं, डिफरेंस एक है। सेकंड, मैं बोल रहा हूँ कि जब बॉल हवा में थी, बॉल जब हवा में थी तभी वो उस टाइम रफल अप कर रहा था हाँ गोलकीपर के साथ हाँ उस टाइम। पर जब उसने हेडर टच किया, जॉन स्टोन ने जो टच किया, हाँ, उस टाइम बॉल ऐसे सामने से आ रही है, तब वो हाँ, नीचे उस झुक टाइम गोलकीपर गया, खाली बर्नार्डो, था। तब वो हाँ नीचे उस झुक टाइम हाँ, गया। गोलकीपर खाली था। जब उसने टच किया, हाँ उस टाइम वो ऑफसाइड हो गया। हाँ, पर जब उसने जैसे ही टच किया, वो बर्नार्डो सिल्वा उस टाइम साइड में था, वो साइड में था बट नीचे साइड, झुका था, हाँ नीचे वो झुका नीचे था। झुक हाँ, के ऐसे हट हाँ, रहा तो ही था। स्टिल ऑफसाइड, ही स्टिल स्टिल ऑफसाइड। ऑफसाइड। हाँ ऑफसाइड था, पर वो गेम से हट रहा था, वो बॉल से हट रहा था, वो बॉल में नहीं जा रहा था वो दैट खेल। डजंट नहीं मैटर, नहीं, तुम ऐसा गोलकीपर थोड़ी के है। स्पेस में नहीं हिंडर मतलब कर तू रहे हो ना। नहीं, वो ऑन साइड उनकी मतलब क्या बोलते तेरे को याद नहीं है क्या हैं, पिछली बार साइट में नहीं ऑफसाइड था, किया वो था मेरे साथ कॉर्नर में? साइट में नहीं था। नहीं नहीं सामने नहीं, खड़ा था, कॉर्नर। झुका हुआ। बॉल मेरा इधर से आ रही है और हाँ वो बर्नार्डो ठीक है, सिल्वा वो मैं उधर है, समझ रहा, बर्नार्डो वो सिल्वा मैं समझ उधर रहा। है। भाई तो तो फिर वो गोलकीपर को सपना थोड़ी आएगा कि ये झुकने वाला है, वो तो हाँ झुक गया ना। झुक गया। गोलकीपर हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। हाँ उसको क्या नहीं, पता पर कि झुकेगा ही कि नहीं डिडंट झुकेगा। इंटरफेयर, उसने इंटरफेयर किया ही नहीं ना बॉल को, नहीं बॉल के किया, साथ, बट बॉल के साथ। गोलकीपर हैज गोलकीपर के नो वे साथ टू उसने नो कि वो इंटरफेयर किया। करेगा कि नहीं। नहीं, गोलकीपर के वो मैं लिए कर सकता हूँ, अगर वो सामने होता, जब वो विजन में होता, तो ही कुड हैव बीन ऑफसाइड, पर वो साइड में था मेरे हिसाब से, इसलिए मेरे हिसाब से इस डिसीजन का कि वो मेरे ऑफसाइड नहीं हिसाब है। नहीं, से वो बहुत एक्चुअली सिंपल वो है। लड़ रहा मेरे था, हिसाब से कीपर से लड़ रहा था, तो ऑफसाइड ही है वो। एग्जैक्टली। नहीं नहीं, यस। जब वो लड़ रहा था तब वो ऑफसाइड नहीं था, नहीं नहीं नहीं, बॉल दैट्स व्हाट आई एम जब सेइंग। हवा में था, बॉल हवा में था, हाँ, तो ऑफसाइड ही था वो। कैसे बॉ- हवा, उस टाइम हवा थोड़ी है ना, क्योंकि जब नहीं नहीं, जॉन अगर स्टोन ने तूने हेड नोटिस टच किया किया होगा, तब ये वो फ्री ऑफसाइड किक में होगा। भी ये हाँ, होता नहीं है, नहीं, फ्री किक में। नहीं, नहीं नहीं सीधे सही बोल नहीं रहा नहीं है। नहीं, जब कॉर्नर में ऑफसाइड नहीं होता। अरे नहीं ऑफसाइड नहीं, होगा। बॉल हवा में जब होता है, बॉल जब हवा में होता है, जब जॉन स्टोन्स लेने वाला होता है, उसके पहले तक वो मतलब रफन अप कर रहा हाँ, था, बट उसने दैट धक्का इज दिया, नहीं नहीं नहीं, उसने बट जब धक्का दैट तक दिया। इज नॉट काउंटेड एज ऑफसाइड। जब तक कॉर्नर में जब ऑफसाइड नहीं होता। दैट्स व्हाट आई एम नहीं सेइंग, नहीं, वो थोड़ी ऑफसाइड बोल रहा हूँ मैं। जब तक जॉन स्टोन का हेड टच नहीं होगा, ही हाँ इज हाँ, नॉट वो ऑफसाइड ऑफसाइड नहीं है। अंटिल देन, नहीं नहीं तब नहीं तक हाँ, वो नहीं नहीं ऑफसाइड नहीं 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 है। नहीं नहीं, तू गलत बोल रहा है। रुक जैसे रुक रुक, मैं बताता हूँ, जैसे ही रुक उसका टच उसी हुआ, का ही मैं बताता हूँ बिकेम ना, ऑफसाइड। उसी का मैं बताता हूँ, रुक मैं बताता हूँ। इफ यू सेट ब्लॉकर्स फ्री किक में, अगर ब्लॉकर्स तू सेट करके तू ऑफसाइड वाला बंदे को पकड़ के, मतलब ऑफसाइड वाला बंदा ऐसे ब्लॉक करेगा, तो वो ऑफसाइड ही है बिना वो छुए ही। अगर वो नहीं, सामने ऑफसाइड नहीं है, फाउल है। अगर वो नहीं सामने फाउल हो, नहीं है, मैं फाउल बोल नहीं, रहा वो हूँ कि ऑफसाइड है, वो मैं बोल रहा हूँ, ऑफसाइड है। अगर वो गोलकीपर के सामने होता उस टाइम, जब जब उस टाइम नहीं 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 जब नहीं, जैन यही तू वुल्व्स वाला जब बोल रहा है जॉन ना, स्टोन वुल्व्स जब वाला गोल जॉन उन्होंने जो चॉप मैं ऑफ बोल रहा किया हूँ था, कि वुल्व्स मैं वाला बोल रहा हूँ, गोल जो उन्होंने चॉप ऑफ किया था। जब जॉन स्टोन्स ने टच किया हेड हाँ हाँ, उस टाइम वो उसकी साइट में नहीं था। उसके साइड में नहीं था, बट उसके पहले तो हाँ, वो इंटरफियर कर रहा था, हाँ, गोलकीपर को तब वो इंटरफियर कर ऑफसाइड, रहा था। तब उस टाइम वो ऑफसाइड नहीं, नहीं था बट ना, नहीं नहीं नहीं, उस टाइम वो हितेश, ऑफसाइड था ही नहीं ना। जब इट कैन सेट अ प्रेसिडेंट कि तुम हाँ अपने ऑफसाइड बंदे को जानबूझ के ऑफसाइड भेज दो, हाँ, फिर धक्का नीचे वक्का झुक जाओ, मरवा के फिर गोल नीचे झुक गोलकीपर जाओ। का मूवमेंट खराब कर दो, हाँ एंड देन यू से यू कि मैं शेयर द, इंटरफेयर मतलब नहीं कर कि रहा। अगर हो सके तो शेयर पिक्चर कर दे कि हाँ वो मैं व्हाट इज द नहीं पिक्चर। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो तीनों मैं ने बोल नहीं देखा रहा, है, मैं हाँ लाइन देखा ऑफ तो है साइट तीनों ने। वाला आर्गुमेंट मैं बोल नहीं रहा, मैं लाइन ऑफ साइट नहीं बोल रहा, बट ही वाज फोर्सफुली इंटरफियरिंग विद द गोलकीपर जस्ट बिफोर, जब तक वो ऑफसाइड, जब हाँ तक तब जॉन तक, स्टोन्स हेडर ले रहा है, तब तक वो इंटरफियर कर रहा था। जॉन स्टोन्स जैसे ही हाँ हंटर किया, वो झुक गया नीचे, मतलब हम्म, हाँ, तो सार दैट्स व्हाट आगे आया, फिर दैट्स ऐसे हुआ, सार व्हाट आगे आया, फिर ऐसे हुआ। जब तक वो ऑफसाइड नहीं था, हाँ तब तक वो रफल कर रहा था कीपर के हाँ साथ। एग्जैक्टली, और वो सब टीमें करती है, वो बहुत टीमें करती है रफल अप वाली हाँ टीम, रफल अप कि वो करती है। क्योंकि वो फाउल नहीं था, वो इतना रफ वाला फाउल नहीं था वो अरे वाला। फाउल में क्या बोल वो, ही नहीं रहा, मैं हाँ, ऑफसाइड बोल तो रहा हूँ। जैसे ही उसने टच किया, जैसे ही जॉन स्टोन का हाँ हेड टच किया, उस टाइम वो दूर चला गया पहले ही, नहीं नहीं उसी नहीं, टाइम नहीं, वो दूर नहीं हितेश गया था, वो हितेश नीचे हितेश मैं झुका समझ था, गया, तू बोल रहा है नीचे कि झुका था। ही प्लेड स्मार्ट हाँ कि वो करके चला गया। बट मेरा बस इतना सा
सा पॉइंट है कि इवन व्हेन ही इज डकिंग ही इज हाँ स्टिल इन्फ्लुएंसिंग प्ले, क्योंकि या गोलकीपर एग्जैक्टली को नहीं पता है कि ही इज गोइंग टू डक। हाँ तो गोलकीपर
को धक्का नहीं खाने के पर वो बाद चल धक्का सामने वाला नहीं है चीज ना, छोड़ दे मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो सामने होता डक कर रहा तो आई यार, अंडरस्टैंड, चार पर पांच वो यार्ड साइड में के था। सामने, हाँ बट वो चार बॉल, पांच यार्ड में इट इज स्टिल डिफिकल्ट फॉर अ मतलब गोलकीपर टू यहाँ से डिसाइड हिज झुक गया पोजीशन। बॉल यहाँ मैं है, हाँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ कि से झुका बॉल बॉल यहाँ बॉल है। मेरे सामने से आ रही है इस साइड एंड हम्म। बर्नार्डो सिल्वा इधर है राइट वहां में, नहीं था, तो वहां नहीं वो था, साइड वहां किधर नहीं है? था। दैट्स नहीं, व्हाई एकदम उसने बीच में सामने था, धक्का बीच में दिया। था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि शेयर द पिक्चर ना, हाँ, वो नहीं शेयर नहीं नहीं, एग्जैक्टली स्टिल है। मैं ये बोल रहा हूँ ना, बर्नार्डो सिल्वा ऐसे झुका था तो तो मतलब वो वो मैं बोल रहा दूर हूँ चला गया, बट बॉल यहाँ से शेयर नहीं कर, आया, बॉल वहां से आया। मैं मैं बोल वो रहा हूँ समझ रहा हूँ। शेयर जब है, नियर जब जॉन पोस्ट। स्टोन ने टच किया हेड, हाँ, उस टाइम वो टच नहीं दिख नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ शेयर कर देना दिनेश, ऑटो फोकस नहीं शेयर क्या, होता। वो तो दिख ही रहा है ना। मैं शेयर अभी यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक्चुअली वो जाना है अभी। कोई नहीं, बट आई स्टिल थिंक इट वाज अरे कंट्रोवर्शियल, बट वो हटा दो मतलब ना, वो ब्लर वाला हटा दो और शेयर करो। ब्लर वाला हटा अच्छा दो। एक सेकंड। मैं देखो क्या एक्चुअली मेरे को अभी बस पकड़ना 12 बजे। एक्चुअली तू कॉर्नर में, मैं मेरा आर्ग्यूमेंट है तू समझ नहीं पा रहा है, बट वो तू बाद में देखेगा। एक्चुअली पिछले बार ऐसे ही हुआ था, चेल्सी अगेंस्ट ही हुआ था। चेल्सी का गोल था वो, एक्चुअली उन्होंने चॉक ऑफ किया था, क्योंकि यू कांट ऑब्स्ट्रक्ट द प्लेयर्स एज एन ऑफसाइड पोजीशन पे रह के, तो ऐसे रह गए तो ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकता। अगर वो उसको सर तक छूने की जरूरत भी नहीं है, इट इज एन ऑफसाइड, बिकॉज यू आर डायरेक्टली इंटरफियरिंग विथ द प्ले। मतलब तू ऐसे, मतलब तू ऑफ साइड ट्रैप बना के, मतलब लोग बना के, मतलब एक बंदा स्ट्राइकर ऐसे रहता है तो स्ट्राइकर ऐसे कर देता है, तो बट मतलब उस टाइम ही डिफेंडर इज भाग नॉट इन नहीं द पाता है। विजन ऑफ द नाइट। मेरा डिफरेंस है कि वो विजन में नहीं था। अगर तू वो पिक दोबारा देख ले, वो विजन हितेश में, देख, हाँ तो किस हितेश साइड में? देख, वो नहीं, वो इतना साइड में नहीं है तो भाई, ठीक बॉल ठाक बीच तो में है बॉल वो। सामने से नहीं आ रही ना, बॉल उसके लेफ्ट हैंड साइड से आ रही हाँ, है। तो उससे मैं बोल मतलब रहा नहीं हूँ है ना भाई, वो गोलकीपर को जिगो। पता नहीं है। हाउ डज द गोलकीपर नो? हाँ, हाउ हाउ डज डज द द गोलकीपर गोलकीपर नो नो कि ये एग्जैक्टली। झुकने वाला है? नहीं नहीं, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि अगर बॉल अगर इधर से आती ना राइट साइड से, तो वो विजन में होता, राइट देन लेफ्ट इट वुड नहीं हैव बीन होता यार, ऑफसाइड। नहीं वो वो अगर उधर गोलकीपर से के बॉल आया सामने है। मतलब इसलिए ऑफसाइड सामने नहीं है, है। वो ऐसे झुक गया लास्ट टाइम, तो मतलब हम्म। गोलकीपर को ऐसे करना पड़ रहा है ना सामने। तो गोलकीपर जब सेव करने जाएगा ना, तो जो भी उसका मूवमेंट होगा, वो सामने वाला उसके इन्फ्लुएंस तो करेगा ना बर्नार्डो उसके के सामने प्रेजेंस झुक की गया वजह तो से उसका मतलब क्या है। इट गेट्स अफेक्टेड। नेचुरल हाँ मूवमेंट नहीं होगा उसका। अगर बर्नार्डो नहीं रहता, ही वुड हैव मूव डिफरेंटली। हाँ, अगर वो ज्यादा प्रिपेयर करता कि हेडर आ रहा है ज्यादा, अभी वो आगे नहीं जा सकता ना, हो सकता है वो आगे जाता, एक्चुअली और एक और चीज है, बेन वाइट हो वाला सकता जो है आगे धक्का जाता। मुक्की वाला है, उसमें पता है ऑफसाइड कभी हो ही हाँ, नहीं ऑफ सकता। साइड नहीं होता वो। आई एग्री, आई क्योंकि एग्री, वो ऑफ साइड नहीं ऑफसाइड होता। क्यों हो नहीं सकता, क्योंकि उनका जो डिफेंसिव लाइन है वो बेन वाइट वाला ही लाइन होता है, सब आई वहीं एग्री, खड़े बट रहते मेरे हैं। को लगता है कि बेन वाइट फाउल वाउल करता है, कभी कभी नहीं देते हैं, एंड आई हाँ, फाउल थिंक करता है ना, तो पीजीएमओएल इज फाउल दे लुकिंग सकता है, बट लुकिंग इनटू ऑफसाइड इट। नहीं दे सकता, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ऑफ साइड ऑफसाइड नहीं, नहीं ऑफ दे साइड सकता नहीं है, है, हाँ। आई एग्री। ऑफ साइड नहीं है, दैट आई एग्री। बट आई थिंक बर्नार्डो या वाला होना चाहिए था, बट या 50-50 अरे वही। वुल्स वाला ना, गोल देख ले भाई, वुल्स ने जो पिछले बार उन्होंने जो चॉक ऑफ किया था, वो भी ऐसे ही था वो कि आके वाला जो बोल रहे हैं ना, आके हाँ बिल्कुल बीच में था, हाँ, हाँ वो ऑफसाइड था। नहीं वो वो परफेक्ट ऑफसाइड था आके क्योंकि वो वाला नहीं, सामने था। वुल्स के अगेंस्ट उन्होंने एक और टीम, नॉट अगेंस्ट सिटी, एक और टीम के अगेंस्ट, आई थिंक नहीं, मैं मतलब लास्ट सीजन में हुआ था कि बिल्कुल हेडर मारा था, वुल्व्स के अगेंस्ट ही था ये अरे मैच। एक तो समझ रहा और हूँ, व्यू वाला तो समझ ही रहा हूँ मैं, व्यू वाला हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, मैं बोल रहा हूँ पर वो ही माइकल ओलिवर ने इन्फ्लुएंस द वो गोल दे गोलकीपर। दिया, ही वो गोल दे दिया वो माइकल ओलिवर ने। नहीं नहीं, वो गोल नहीं हुआ, वुल्स वाला कैंसिल हो गया था। नहीं नहीं नहीं, वो दिया था नहीं आके नहीं ने, नहीं नहीं, आके बिल्कुल सामने था वुल्स उस वाला टाइम। जो पिछले वाला जो कंट्रोवर्शियल जो पिछले सीजन में हुआ था, आई थिंक जो पीजीएमएल आल्सो अपोलोजाइज्ड फॉर इट, दैट वाज हाँ वही, बेसिकली that was a goal, but it was apologized after, but they chalked off तो for दैट्स व्हाट आई एम यस। सेइंग ना, वही Wolves. तो मैं बोल रहा हूँ उस टाइम कि एक बंदे ने हेडर मारा था और बीच में सामने कोई था विजन में, बिल्कुल उस टाइम वो बिल्कुल सामने था, तो वो ऑफसाइड था और अरे उन्होंने विजन, बिल्कुल स्क्रैप कर अबे दिया। बॉल यहाँ से नहीं आता, वो ठीक है, बॉल यहाँ से भी आया तब भी गोलकीपर के सामने ही तो खड़ा है, वो नहीं ऐसे क्यों नहीं, है। वो वही तो नहीं करते ना, तू देखना जब तक वो विजन में नहीं आता वो हल्का सा साइड में देगा, वो ऑफसाइड नहीं नहीं देंगे। नहीं नहीं तू नहीं, कितने भी ऐसे डिसीजन देखना देख, वो लास्ट लास्ट एक सीजन। सेकंड तक तो वो धक्का मुक्की चल रहा है उन दोनों का। नहीं नहीं, तू कितने कितने मैच देख के है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं यहाँ नहीं पे नहीं, बंदा ये खड़ा है वाला और वो साइड से नहीं नहीं हट नहीं नहीं, जाए तो उस वो टाइम उसको नहीं पूरा देता। नहीं, डिफेंसिव अब लाइन दे पीछे देते हैं। रहता है, उस टाइम पूरा अब डिफेंसिव दे लाइन देते पीछे हैं रहता है, तू एक्चुअली तू वहीं पे अभी। गलत कर रहा है। तो पूरा या डिफेंसिव लाइन इंटरफेरेंस विथ पीछे प्ले रहता के है। रूल्स अब स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, दे ओनली दे एक कंसिडर बंदा, इट सिर्फ इंटरफेरेंस। बर्नार्डो सिल्वा ही डिफेंसिव लाइन पीछे खींच गया था, नहीं नहीं, जब बाकी तक हाँ। मेरे हिसाब से वही है कि जब तक तू विजन की लाइन में नहीं है तब तक वो ऑफसाइड नहीं देते हैं। अगर वो साइड में खड़ा है नहीं बंदा बट तो वो कोई वो दिक्कत झुक, नहीं है। मतलब वो बट झुका वो है है विजन की भाई, वो लाइन में। झुका है। नहीं तो बॉल तो उधर से आ रही है ना, तो विजन तो वो तो उधर वो देख रहा है झुका ना, क्यों, बंदा तो उधर तो है वो वो। झुका क्यों, तो वो वो तो झुका क्यों, हटेगा ना, तो वो तो हटेगा ना, क्यों हटा, क्यों हटा डक ब्रो। करेगा ही ना तो वो तो। मतलब उससे मतलब कुछ तो वो इन्फ्लुएंस तो कर रहा है ना, हटा रहा नहीं, मतलब वो तो इन्फ्लुएंस ही बॉल कर रहा से है। इवेड करेगा ही ना, नहीं, हटता लोग ही तो ऐसे है। करते हैं, लोग ऐसे करते ब्रो, हैं, मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, जो लोग ऐसे लॉन्ग करते रेंज, हैं तभी मैं बोल ऑफसाइड नहीं रहा हूँ, होता है, यू शुड जो नॉट डू लॉन्ग एनी एंटिक्स, मतलब तू जो कूद बंदे भी नहीं लॉन्ग रेंज, सकता। अच्छा तो कूद, एग्जैक्टली अच्छा रुक रुक रुक, अगर वो बर्नार्डो सिल्वा कूदता तो ऑफसाइड कूदता होता या मतलब, नहीं।
कूदता मतलब अगर बर्नार्डो सिल्वा ऊपर कूदता तो ऑफसाइड होता ही नहीं। तो ऑफसाइड होता, क्यों? क्योंकि वो Kind इंटरेक्ट of तो physical इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है ना इन्फ्लुएंस पे, क्या उसने influence वो कर रहा है? हट वो तो बॉल यहाँ से जैसे है इंटरेक्शन ना। से नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही जेन स्टोन का हेडर टच हुआ वो हाँ। गेम से बाहर हट नहीं, वो लग अगर गया इस उस साइड टाइम कूदा ही। सोचल इस साइड उसने कूदा जो राइट साइड। उसने जो किया पहले किया होगा उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑन साइड था उस सिंपल टाइम। सा रीजन है, इफ गोली चोज कि मैं आगे आके पंच करूंगा, ही कैन नॉट डू इट बिकॉज ऑफ बर्नार्डो सिल्वा। मेरे को बस इस मेरे वजह से हिसाब से लगता कि है ये वो ही ऑफसाइड है। वाज नॉट नहीं, वो ऑफसाइड इन्फ्लुएंसिंग द गेम, वो 100% गेम में ऑफसाइड है इन्फ्लुएंस बिकॉज़ कर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा जैसे ठीक ही है, जो तो मेरे एफए पीजीएमएल इसको अगर अपोलोजाइज करेगा तो मतलब मेरा आर्गुमेंट जीत गया और तू हार गया। नहीं हाँ नहीं मैं हाँ 100% मैं इसको तो बोलता ही apologize हूँ करेगा। ब्रो, मैं तो बोलता ही हूँ, मैं तो बिल्कुल सब्जेक्टिव है वो कि टोसन का नहीं, रेड कार्ड है, मैं बोल ही ये रहा हूँ वो तो 100% ऑफसाइड है ब्रो। इट्स नॉट No, क्लियर। मेरे हिसाब से नहीं है, I मेरे think हिसाब they से will नहीं है। apologize. इट्स नॉट क्लियर एंड नहीं, ऑब्वियस टू ओवरटर्न द डिसीजन। वो एक बार क्योंकि उसको वो लाइंसमैन गलत को था, दिख वो गया, गलत था, वो गलत लाइंसमैन था को कि दिख गया था कि वो ऑफसाइड है तो तो उनका उसने दे एडवांस दिया ऑफसाइड। तो तू वो जाके गलत था। ओवरटर्न करना तो है ही नहीं, क्योंकि उसको दूसरे एंगल वाला दिखाया नहीं उन्होंने No, पीछे। I think it is interference with play, offside or not anyway. But इंटरफेरेंस विद द गोलकीपर, दैट इज व्हाट आई एम yeah, सेइंग। well, इट्स that's what नॉट I'm saying. ऑफसाइड इन द सेंस कि मतलब वो मतलब लाइन ऑफ साइट वाला तो मैं बोल ही नहीं रहा। ही इज इंटरफियरिंग विद द गोलकीपर, ही इज एक्टिवली इन्फ्लुएंसिंग द गोलकीपर। मतलब वो हाँ। झुका तो भाई मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तू मतलब मैं तू तेरे हिसाब से लाइन ऑफ साइट पे तो नहीं है, अगर वो कूदा भी तब भी लाइन ऑफ साइट पे नहीं है भाई। बॉल तो नहीं यहाँ तब से आ तो रहा है। तब नहीं तब तो वो कर रहा है कैसे ना गोलकीपर कैसे के आ रहा पास है? आ मतलब झुकना गोलकीपर तो सीख ठीक है। नहीं तब गोलकीपर के वो पास आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है, तो वो तो उसको डिस्ट्रैक्शन लगेगा ना कि मेरे साइड एक बंदा आ रहा है तो उस मतलब टाइम इस पे। साइड कूद सकता है, राइट साइड कूदा तब टाइम भी प्रॉब्लम है। इस टाइम वो दूसरी साइड जा रहा है। जब और बंदा दूसरी नीचे मतलब वो तेरे गया हुआ सामने नहीं था, वाला बैठ बंदा गया है, था। और दूसरी तेरे चीज अगर सामने एक मैं बोल बंदा रहा हूँ है, सेम चीज मैं बोल बॉल रहा आ हूँ रहा कि है एकदम से वो झुक गया, मैं तो सेम मतलब चीज वो बोल रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस ही अगर है। सेम जॉन स्टोन्स ने जो हेडर डायरेक्ट किया था वो उसके बॉल के बिल्कुल सर के बीच से गया था। जब उसने ऊपर बॉल किया था उसके सर के ऊपर से बिल्कुल गया था, उसको कोई डाइव नहीं किया उस हाँ गेम में। अगर मैं बोलता हूँ वही चीज अगर क्या बोलते हैं स्टोन्स का अगर वो ग्लांस हेडर होता और वो फार पॉइंट की नहीं, तरफ वो जाता फार पॉइंट वाला तो और तब वो डाइव मारता उस टाइम नहीं, तब रोकने वो के नीचे लिए, झुकता तो तब तब वो ऑफसाइड था। तो नीचे झुकता तो तब वो ऑफसाइड था। क्यों तब वो क्योंकि वो लाइन ऑफ साइट है ना उस टाइम, वो भाई? वो जब तो उस झुक गया टाइम नीचे। तब वो लाइन कैसे ऑफ साइट में है, तब मैं कैसे बोल लाइन रहा ऑफ तब वो साइट लाइन में है? साइट वो में है। कैसे लाइन ऑफ साइट में है? जब जॉन स्टोन्स का जब हेडर का डायरेक्शन आ रहा है वो हाँ। उसके चेहरे पे आया सीधा, नहीं नहीं बिल्कुल वो चेहरे पे नहीं आया है नहीं, वैसे बिल्कुल। नहीं होता है, वो वैसे उसके नहीं होता है। नीचे तो उसको बिल्कुल विजन नहीं दिख रहा है, वो वहां यू पे कैन नॉट नीचे बंदा डिस्ट्रैक्ट है, द गोलकीपर। उसको सामने देख रहा है। नहीं नहीं, तू ब्लॉकिंग वाला मैं चीज होगा ना अभी प्रीमियर आई लीग थिंक का। इट्स लॉन्ग डिस्कशन, पता नहीं लॉन्ग चलेगा Yeah. देखते डिस्कशन हैं नहीं क्या है, देख रहे इट्स अ हैं। कंप्लीट इट्स एन ऑफसाइड बिकॉज़ Let's see जो what रूल्स बता रहा PGMOL say. है, रूल्स Let's में see हिसाब what से यू PGMOL शुड say. नॉट इंटरफियर। मतलब ब्लॉकिंग या कोई भी तू मतलब ऑफसाइड पोजीशन से तू इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं कर सकता। यू कैन नॉट ब्लॉक। बेसिकली तू फ्री किक ले रहा है, मतलब एक स्ट्राइकर आके ऐसे बंदा खड़ा है बट यू बेसिकली ब्लॉकिंग द डिफेंडर, बट ये बंदा डिफेंडर हेडर नहीं लिया बट उसने हेडर लिया है, तो तब भी ऑफसाइड ही है। ये 100 बहुत बार पिछले वो सीजन में हुआ है। ऑफसाइड जब रफल अप कर रहा है तब तो वो ऑफसाइड नहीं रफल है अप ना। नहीं है, इसको बोलते हैं डिफेंडर जो ब्लॉक कर रहा है, ही इज इन्फ्लुएंसिंग द प्ले ब्रो। ब्लॉकर्स आई थिंक इन्फ्लुएंस यू आर करते हैं नॉट प्लेस। अंडरस्टैंडिंग कि वो तू विजन ऑफ साइट वाली चीज देख ही वो विजन ऑफ समझ ही नहीं साइड तो रहा। मैं बोल ही मेरे नहीं लिए रहा, मैं विजन ऑफ विजन साइड ऑफ तो बोल ही नहीं रहा। तू क्योंकि वो डी जब ऑफ साइड डिक्लेयर करते हैं तब वो विजन ऑफ साइट में ही करते हैं, नहीं वरना नहीं नहीं वो करते हैं वो। इन्फ्लुएंस होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है। गोलकीपर को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए तुझे। वो आप इन्फ्लुएंस ऑफसाइड कहाँ कर पोजीशन रहा में है? हाँ जब तक वो इन्फ्लुएंस कर रहा था तब तक वो ऑन साइड था। नहीं वो इन्फ्लुएंस ही जब है। जब तक ठीक वो है, वैसे भी मेरा टाइम हो आई गया थिंक है। ये जब मैं चलता ओके रहेगा। बट बट ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही था पूरे मैच के बारे में, क्योंकि ओके बॉल तो Yeah. बहुत गेमिंग था। हाँ वरना बट yeah, but let's conclude this podcast. I think it was a very fiery podcast right at the end of the conversation. I think it's going to be happening on because of this fucking referees and the state of English Premier League games. But we have next week Bonkers and we have Champions League as well. Exciting set of fixtures, but I'm worried about the injuries as an Arsenal fan because ये वापस start होने वाला है, ये वापस Champions League start हो गया है. So this is Ranga signing off. This is Paul signing off. There's Rohan signing Thank you, off. Keep Rohan, doing the so good much work. coming for the channel. Appreciate निकल it. रहा हूँ, ठीक है, bye bye. Hello, always a pleasure. See you. Got it, Lou.